أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ بات ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ نصیب کرے گا، ادیان باطلہ کو مغلوب کرے گا، ولو کرہ المشرکون۔ لیکن ہماری دعوت کی محنت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کام کرنے والوں کو یقین ہونا چاہیے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی جی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ۔ ہم کام کرنے والے حالات سے متاثر نہ ہو، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ہمارے پاس تو افراد نہیں، ماحول موافق میں نہیں ہے۔ نہیں دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے قسمیں کھانے والوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ارے بولو ہدایت دی کہ نہیں؟ ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے ضدی اور قسمیں کھانے والے انسانوں کو بولو ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ بھی وہی محنت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ جیسے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے ہیں، ایسے ایمان والے کی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک مدد کرے گا۔ ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ تو مدد کے سہارے پر چل رہا ہے، ہماری کسی کی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو ہدایت دیں، لیکن میں اور آپ محنت کے مکلف ہیں۔ اگر ہماری محنت صحیح طریقے سے وجود میں آ جائے گی تو اللہ پاک کا نظام ہے، جیسے دنیا میں زمین کی بونے کی محنت اگر صحیح ہو گئی تو بولو زمین سے غلہ، اناج، پھل فروٹ، ترکاری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے لوگوں تم زمین سے غلہ، اناج، ترکاری کو پیدا کرتے ہیں یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ایسے دوستو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کہ کیسے ہوگا، کیسے مخالفت ختم ہوگی، کیسے پورا مجمع دیندار بنے گا۔ ہمارے بس میں محنت ہے، اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیاد ہیں۔ ایک تو فکر کرنا، دوسرا جان و مال کی قربانی لگانا، اور تیسرا فرمایا دعا کا مانگنا۔ یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہم فکر کے نتیجے پر، قربانی کے نتیجے پر اور دعا مانگتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو اللہ پاک کا وہی نظام چلے گا جو اللہ پاک اور جگہ نظام چلاتا ہے۔ ہماری اپنی نیتوں کی وسعت ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے تھک تھکا کر آئے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے،
اور صبح سے شام تک آپ محنت میں لگے. شام کے وقت کے اندر جب گھر آئے تو آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھلاتی اور روتی جا رہی. ابا جان، دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک داخل کرے گا. اور اللہ پاک نے داخل کر کے بتلایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. قسمیں کھانے والوں کو اللہ نے قبول کیا، بھاگنے والوں کو اللہ نے قبول کیا، کلمے سے اپنے آپ کو روکنے والوں کو اللہ پاک نے قبول فرمایا. آج بھی دوستو بزرگوں، اگر ہم لوگ فکروں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اگر اس کام کے اندر چلیں گے تو آج بھی اللہ پاک کی طاقت وہی ہے، اللہ کا نظام وہی چلے گا. ہمیں ذرہ برابر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ یہ زونوں کی جماعت جو چلی ہے، ٹھنڈی میں، گرمی میں، بارش میں، اور پیدل اور مجاہدہ کرتے ہوئے، بڑی مبارکبادی کے قابل یہ جماعت ہے. دوستو بزرگوں، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی ٹھنڈی کے دنوں کے اندر جنگلوں میں اور دیہاتوں میں اور کھیتوں میں اور کسی کے اوٹے پر رہنا اور لوگوں کے پیچھے بھاگنا، کڑوی کسیلی کو برداشت کر لینا، اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا نعمت ملے گی وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. اس لیے یہ کارگزاری کا عمل ایک سنت کے مطابق عمل ہے، ورنہ ان کی حقیقی کارگزاری تو انشاءاللہ قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے، ہم کس کی محنت سے لگے ہمیں پتہ نہیں، اور ہماری محنت سے دنیا میں کتنی خیر وجود میں آ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں. انہوں نے نمازیں پڑھی، اذانیں دی، پیدل چلے، لوگوں کو دعوت دی، تعلیم کے حلقے میں بٹھایا. اب اس کے نتیجے پر لوگوں نے کیا کیا نیتیں کی. بعضوں نے یہ طے کیا کہ میرے بچوں کو حافظ اور عالم بناؤں، بعضوں نے توبہ کی، بعض نماز نہیں پڑھتے تھے، دل میں ٹھان لی کہ آج کے بعد کوئی نماز کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کارگزاری تو ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ بولو کس دن ظاہر ہوگی؟ قیامت کے دن. پھر آدمی افسوس کرے گا کہ کاش میں اور زیادہ قربانی دیتا اور اپنے آپ کو کھپاتا اور میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہر تقاضے پر لبیک کہہ دیتا. ابھی اللہ پاک نے موقع دیا ہے، بہترین کام، اللہ کی مدد کو اتروانے والا اور دنیا کے باطل کو ختم کر کے حق کو دنیا میں وجود دینے والا کام اللہ پاک نے فرمایا. اللہ پاک کا قانون ہے، جاء الحق وزهق الباطل. جب دنیا میں حق آئے گا تو اللہ پاک باطل کو ختم کریں گے، اور باطل تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حق آنا چاہیے. یہ جو مبارک محنت کے نتیجے پر جو قربانیاں وجود میں آئی، انشاءاللہ اس کے نفع ہوں گے. بہت پہلے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ جب بمبئی کے اندر بہت پہلے ابتدائی زمانے کے اندر بمبئی میں ان کی جماعت گئی تو قبرستان میں ٹھہری، کوئی مسجدیں نہیں تھی. مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ گئے، بولو کوئی مسجد تھی؟ ایسے ہی کسی کے باغ میں، کسی کے کوٹھے پر. یہ بہت بڑا عمل کر کے لائے ہیں ماشاءاللہ، اور 1 سال کی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کے ہر گھر کے اندر اسلام کو داخل کر دی. اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں ہوتی. ہمیں چاروں زونوں میں 2 راؤنڈ کی 8 جماعتیں چلانی چاہیے.
یہی تو موقع ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا مغفرت قسم پرس انسانوں کے پاس رکھا ہوا ہے. مغفرت کا جو معاملہ ہے، ایسے قسم پرس انسان کے جن کے پاس کوئی دنیا بھی نہیں، دین بھی نہیں، بیچاروں کو معلوم بھی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہے، اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی، نماز کا ماحول ہے، اجتماع ہے، سنت و شریعت ہے، تقوی، طہارت، توکل ہے، آخرت کی فکریں ہیں، دین ایمان کے مذاکرے ہو رہے. ورنہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہوں گے کہ جنہوں نے یوں کہا ہوگا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے ایمان آخرت کی بات سنی. ایسے لوگ ملے ہوں گے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ پہلی مرتبہ ہم لوگ مسجد میں آ کر نماز میں سجدہ ریز ہوئے. ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جماعت آئی، جماعت کا امیر صاحب نے سب کی ملاقات کروائی. پھر امیر صاحب کان میں کہنے لگے وہ جو بڑے میاں جن کی عمر 60 سال کی ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ آ کر سجدہ کیا. 60 سال زندگی کے گزر گئے، لیکن بولو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہیں ملی. اب یہ جو ہمارے ایسے لوگ قسم پرس انسانوں کے پاس جائیں گے اور ان کو دین ایمان کی باتیں کریں گے، اس بستی میں اذان نماز کو زندہ کریں گے، لوگوں کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی بات پڑے گی اور اللہ پاک کتنے خوش ہو جائیں گے. اس لیے بھائی دوستو، بڑی مبارکبادی کے قابل یہ ہماری جماعتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں ایسے حالت کے اندر اپنا وقت پیدل لگا کر آئی. اللہ پاک ان کے نکلنے کو قبول فرمائے. لیکن ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بستیاں، ہمارے علاقے، یہ کتنا چھوٹا سا ضلع ہے اور اس میں اور جگہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے 100 125 150 کلومیٹر اتنے بڑے علاقے ہوتے. آپ کا علاقہ 40-50 کلومیٹر کے درمیان کا ہے اور کتنے مکانات ہیں. اگر یہ ہمارا بیٹھنے والا مجمع اگر یہ طے کر لے اور اپنی جان کی بازی لگا دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے 1 سال کے اندر اندر اللہ پاک پورے نقشے کو بدل دے. تو کیا ہم سب نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے محنت، اللہ ہم سب کو قبول کرے. بھائی آ جاؤ، پہلی جماعت آ جاؤ. اس میں آپ کو کارگزاری میں سنانا ہے کہ آپ کو ٹوٹلی بستیاں کتنی تھی، اس میں سے آپ نے کتنی جگہ کام کیا، اس میں مسجد مدرسے والی کتنی بستیاں تھی، ایسی بستیوں میں قیام کتنی جگہ آپ نے کیا جہاں مسجد مدرسے نہیں تھے، اور قیام کیا تو کہاں کیا، وہاں کیا عمل ہوا، اذان نماز زندہ ہوئی، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے وقت لگایا، آپ کا اپنا تاثر کیا ہے، آپ کے ساتھیوں کا وقت کیسے لگا، اور اگر آپ نے یہاں کی دعوت دی ہے تو اس کا کیا نظام آپ نے بنایا ہے. یہ پوری ترتیب سے کارگزاری صورت. آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے، اس میں 4 مہینے والے کتنے، چلے والے کتنے تھے، آپ نے کتنے کلومیٹر پیدل سفر کیا، زیادہ سے زیادہ ایک وقت کے اندر، ایک دن کے اندر کتنا چلے، یہ تھوڑی سی کارگزاری سنا دو. ویرم گام کی جماعت تھی، کل 9 ساتھی تھے. 4 ماہ لگے 9 ہوئے، ساتھی تھے. ہاں 4 ماہ لگے ہوئے 8 ساتھی تھے. 40 دن والے ایک ساتھی تھے. ماشاء اللہ. کل پیدل 170 کلومیٹر چلے، زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر ایک پہلے دن تو میں. یہ سناؤ کہ کتنی بستیاں آپ کو دی گئی. کل 28 بستی تھی جہاں 5 سے زیادہ گھر تھے، اور 17 گاؤں ایسے تھے جو 5 سے کم مسلمانوں کے گھر تھے. اس میں 15 جگہ قیام ہوا. اس اس میں 27 بستی میں 15 جگہ آپ نے قیام کیا. ہاں، اس میں 2 دن قیام، مطلب ایک دن سے زیادہ 7 جگہ.
اور قیام میں تمبو ڈال کے 3 جگہ، گھر میں ایک جگہ نہیں، مسجد مدرسے والے کتنے دیہات تھے؟ یہ 15 قیام کیا، اس میں مسجد عبادت خانہ کچھ بھی نہیں تھا، اسے کتنے تھے؟ ایسے 7. 7 تھے، باقی 8 جگہ مسجد مدرسہ کچھ نہ کچھ تھا. ہاں اچھا، تو وہاں پر آپ نے مسجد مدرسے میں قیام کیا جب مسجد مدرسہ تھا وہاں؟ ہاں، وہ مطلب ٹھیا تھا ہاں اس ٹھیک جگہ. ہے. اور باقی کی 7 جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں کہاں قیام کیا؟ اس میں ایک جگہ گھر میں ایک ساتھی کے گھر میں قیام کیا تھا. 3 جگہ کھلے گھر میں میں، قیام مطلب کرنے کی کیا وجہ؟ وہ مسجد میں گئے تھے لیکن وہ مسجد میں رکنے نہیں دیا کہ نہیں آپ کے پاس تو ٹینٹ تھا نا. ہاں، تو مسجد تھی نا، وہاں مسجد میں غیر مانوس مسجد تھی، تو مسجد میں گئے تھے تو پھر منع کرا کہ بھئی یہاں ہماری مسجد میں نہیں. تو پھر وہ ساتھی کے گھر کے آنگن میں مطلب الگ سا ایک گھر تھا، تو بولے یہاں رک. ساتھی نے کہا کہ آپ ہاں، نے جا کر اجازت مانگی؟ نہیں، وہ لے گئے ہم کو، مسجد ماشاء میں اللہ. رکنے نہیں دیا. کہہ چلو، رہے ایک تمہیں. جگہ تو آپ نے گھر میں قیام کیا، باقی اور ایک جگہ کھلا تھا، مطلب ایک جگہ پڑی تھی وہاں ٹینٹ ڈال کے قیام کیا. 2 جگہ ایسے کر. اور باقی کچھ جگہ ٹھیے تھے، مطلب اپنے عبادت خانہ بنایا نہیں، ہوا آپ نے کہا نا 7 جگہ جہاں ٹھیے مسجد مدرسہ نہیں تھا، اس میں ایک جگہ آپ نے گھر میں قیام کیا، ایک میں کھلے میں قیام کیا، باقی کی 5 جگہ گیرج پر قیام کیا. گیریج میں کیا. وہاں کیا کام کیا؟ وہاں ملاقاتیں کرتے تھے، جو ہوٹل وغیرہ تھا ہائی وے پر وہاں، اور پیچھے گاؤں تھا تو گاؤں میں بھی ملاقاتیں کی. کرتے تھے اور کتنی کی؟ ایک گاؤں میں اتنے گھر تھے، اتنی ملاقات ہوئی، اتنی نمازیں زندہ ہوئی، اتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی. پوری کارگزاری سنو، تفصیل کے ساتھ جو کیا وہ کرو. مثلا پہلے گاؤں میں آپ گئے، وہاں کتنے مکانات تھے؟ پہلے گاؤں میں گئے، وہاں کون سا گاؤں تھا؟ یہ اپنے کاریلا. ہاں ماشاء اللہ. وہاں کتنی آبادی تھی؟ 30 مکان تھے. 30، ماشاء اللہ. وہاں ایک مدرسہ بنا ہوا تھا، مولانا پڑھانے آتے تھے شام کو عصر کے بعد بچوں کو. باقی وہ نماز وغیرہ تو نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ وہاں. پھر جو بھی تھے 30 گھر تھے، ان کی ملاقاتیں کی جانے کے سب بعد. گھروں کی ملاقات ہو گئی؟ ہاں، تقریباً کچھ لوگ نہیں تھے، مطلب کچھ گھروں میں حاضر نہیں تھے تو کتنے نہیں گھروں گئے. کی ملاقات ہوئی؟ لگ بھگ بالغ مرد ہم لے لیتے تھے کہ بھئی یہاں بالغ مرد کتنے ہیں، پھر ان کی ملاقاتیں کرتے تھے. تو تقریباً ہو جاتی تھی ملاقات تو سب، جو کچھ لوگ ایسا نہیں نہیں، ہوتے ایسا تھے. نہیں. 30 گھر تھے، 60 بالغ مرد تھے. اب اس میں سے کتنی ملاقات ہوئی، کتنے نہیں ہوئی؟ لگ بھگ تقریباً یعنی بجے مولانا اس کے ملاقات میں جاتے تھے تو ہر گھر کی مطلب فکر کر لیتے تھے. اب جو مل جاتا تھا ان کی ملاقات ہو جاتی تھی. پھر دوبارہ جاتے تھے، صبح گئے پھر شام کو تو گئے. میں وہی پوچھتا ہوں کہ ایسے کتنے گھروں کی، کتنے افراد کی ملاقات ہوئی؟ وہ ایک ایک گاؤں کا نہیں لکھا، ٹوٹل لکھی ہے ملاقاتیں، ہر گاؤں کی ملاقاتیں. لیکن ہم کوشش یہی کرتے تھے کہ جتنے مطلب جتنے گھر ہیں، 8 گھر، 10، 15، 20، تقریباً سب بالغ مردوں کی ملاقات کی فکر کر لیتے تھے. اگر صبح میں نہیں ملتے تو شام کو جاتے تھے اور شام کو ملاقات کر لیتے تھے. تو اس گاؤں میں کوئی مسجد مدرسہ تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ بچے پڑھانے کے لیے آتے تھے مولانا شام کو عصر کے بعد. تو پھر ہم نے وہاں کچھ نوجوان لڑکے تھے، ان کی ملاقات کری، ان کو ہمارے ساتھ. ان لوگوں کے نماز کا کوئی انتظام تھا وہاں؟ نہیں، نماز کا نہیں تھا، لیکن وہ جو عبادت خانہ تھا نا وہاں ان کو کہا کہ بھئی آپ، لیکن وہ لوگ آتے نہیں تھے. پھر کچھ بچے تھے 14-15 سال کے، وہ ایک نماز پڑھتے تھے عصر کی مولانا کے ساتھ. مولانا جب پڑھانے آتے تھے تو ان کے ساتھ آپ پڑھتے نے تھے. وہاں کتنے دن قیام کیا؟ 2 دن. اس پر آپ نے اذان نماز کو کچھ زندہ کرنے کی محنت کی؟ ہاں، وہ ان کی ملاقاتیں کر کے ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ آتے نہیں تھے. نہیں، ایسا نہیں. دیکھو، کسی بستی میں اگر ہم جاتے ہیں
وہ 30 مکان ہے، اس کا معنی 60 بالغ مرد ہیں۔ اب آپ کے ساتھ تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، 2 4 5 لوگوں نے، لیکن وہاں آپ کے جانے کے بعد مستقل نماز اذان زندہ ہو، آپ کو اس کی ترتیب دینے کی۔ بھائی دیکھو ماشاءاللہ کسی کا جگہ خالی ہے، یا کسی درخت کے نیچے، یا کسی ایسی جگہ کہ جہاں کسی کی ملکت نہ ہو، ایسی جگہ پر جا کر ان کو ایسا کچا، بھائی 4 بمبو کھڑے کر دیے، اوپر پلاسٹک ڈال دیا، دیکھو بھائی آج سے تمہارے یہاں نماز پڑھنا شروع کرو۔ آپ کی موجودگی میں کوئی اذان دینے والا ہو اور صحیح اذان دیتا ہو تو آپ اس کو بات کر لو، وہ اذان بھی دے وے۔ اگر اس میں سے کسی کے چلے 4 مہینے لگے ہوئے ہو، یا کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے، اچھی طریقے سے نماز پڑھا سکتا ہے، آپ اس کو امام بنا دو، اور آپ کی موجودگی کے اندر آپ ان کو یہ طے کر لو کہ دیکھو آپ کو یہاں اذان بھی دینے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی۔ ایسا کچھ آپ نے طے کیا؟ وہ وہاں جو لڑکے تھے نا 14-15، وہ تو بڑے جو تھے وہ تو آتے بھی نہیں تھے، اور وہ بالکل مطلب جانتے بھی نہیں تھے دینی اعتبار سے اس کے کہ لیے ہم تو کو آپ کی نہیں جماعت آتے۔ کو بھیجا تھا ہاں بھائی۔ تو وہی ان کی ملاقاتیں کری، ان کو مطلب وہاں مقام پر بھی سمجھاتے تھے، پھر ان کے گھر پہ بھی، پھر یہاں مدرسے میں بھی لاتے تھے، کبھی 1-2 آ جاتے تھے۔ پھر وہاں لڑکے تھے 14-15 سال کے، وہ پڑے ہوئے تھے، پھر ان کا ذہن بنایا کہ تم لوگ ایک عصر کی نماز پڑھتے ہو نا، باقی نماز بھی یہاں پڑھو، اور باقی سب بھی جو بھی آوے نا ان کو، جب تک ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، جب جماعت نہ ہو اس وقت آپ ان کو دعوت دو اور ان کو یہاں لاؤ، اور جو بھی آ جاوے 1 2 3 4 5 جو بھی آ جاوے تو آپ مل کر نماز پڑھو، اور تم پڑھاؤ نماز۔ وہ لڑکے کو سمجھایا، تو کیا ہوا؟ نہیں وہ لڑکے پڑھ لیتے تھے، باقی وہ تو آتے نہیں تھے مولانا۔ تھوڑی اور ہمت افزائی کی بات کر کے شروع کرا دیتے نا بابا۔ یعنی 60 کا مجمع ہے، 30 مکانات ہے، اب ایسے ہی بغیر نماز کے زندگی گزری، بولو یہ نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نماز کا عمل وجود میں آ جاوے، سب سے پہلے ہماری دعوت تو یہی ہے۔ کسی بھی، اب آپ 1 سال میں 1 مرتبہ گئے، اب پورے سال کے اندر اگر ہماری جماعتیں نہیں گئی اور ان کے کانوں میں کوئی اللہ اس کے رسول کی باتیں کہنے والا نہیں، اور نماز سے بھی دور ہو گئے، تو بولو کیا ہوگا؟ آگے چل کے ان کے ایمان کے لارے پڑ جائے گے۔ ہماری پہلی محنت تو یہی ہو، اور جس بستی میں اذان بھی نہ ہو، نماز بھی نہ ہو، بولو اس کے اوپر شیطان کا تسلط آ جائے گا کیا؟ اور ان لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا اور کیا سبب ہے؟ ہمارے لیے تو یہ اللہ کے احکامات کی پابندی پر اللہ پاک ان کو جماؤ نصیب کرتے ہیں۔ چلو، اور آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ نماز تو تقریباً ہر جگہ جو بھی مقامی ہوتے تھے نا وہ آ جاتے تھے، ان کو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھ لیتے تھے، 2-4 ہر جگہ۔ ایک جگہ گئے ملاقات میں، تو 2 ساتھی، 2 گھر تھے مطلب وہاں مسلمانوں کے، تو وہاں اکثر ترتیب یہی رہتی تھی کہ جہاں جاتے تھے ملاقات میں تو نہیں، وہ یہ 2 گھر والے کارگزاری سناؤ۔ تو وہاں مطلب نماز بھی پڑھی ساتھیوں نے، اور انہوں نے یوں کہا کہ 45 سال میں پہلی مرتبہ ہماری کوئی دین کی نسبت پر ملاقات کے لیے آئی دیکھو ہمارے یہ ساتھ، حالت، کہ آج تک کوئی مہمان بن کے آئے ہیں لوگ۔ یہ کتنا دور ہے آپ کے ویرم گام سے؟ ویرم گام یہ گیڈیا ہے نا، گیڈیا کے پاس میں ہے گاؤں، وہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ گیڈیا سے سولانا کتنی، 9-10 کلومیٹر 10 کلومیٹر۔ تو آپ کی گیڈیا والے وہاں جاتے نہیں ہے بھائی؟ گیڈیا کے کون کون ہے؟ آپ لوگ اس بستی میں جاتے نہیں گئے۔ جانا چاہیے۔ 45 سال کے بعد یوں کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی نے دین ایمان کی بات کہی۔ ابھی نماز کا حال تو ہم نے پوچھا نہیں، ابھی تو ان کے کانوں میں 45 سال کے بعد اللہ اس کے رسول کی بات پڑی ہے، اور ہم سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ گیڈیا میں کتنے لوگوں نے چلا لگایا؟ 150 اور 4 مہینے 14 ماشاءاللہ۔ تو بالکل آپ کا دوسرا گشت کہاں ہوتا ہے؟
दूसरे को अभी नहीं होती। और करते हैं आप लोग अतराफ की 3 दिन की जमातें कहाँ जा रही है? कारेला है ना, वो बस्ती बजे बस्ती है कारेला। तो ये बस्ती को नहीं लिया अपनों ने, अब लिख लो उसको। आइंदा याद रखो, अपने अतराफ की जितनी ऐसी बस्तियां हैं, हमारी 3 दिन की जमातें टेंट लेकर वहीं जाकर ऐसे तमाम अफराद की मुलाकात करें। ये अब हमारे जिम्मे है। अब बोलो कोई नबी आने वाले हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो दावत की मेहनत करते हैं वही 3 दिन लगाते हैं, वही गश्त करेंगे, वही मुलाकातों का निजाम करेंगे, और उन्हीं की थोड़ी सी फिक्र के नतीजे पर अल्लाह उसके रसूल की बात इनके कानों तक पहुंचेगी। और 2 मकान है, कोई मुश्किल नहीं। इनकी गमी खुशी के अंदर साथ देना, इनको अपने यहाँ शादी ब्याह में बुलाना, इनकी शादी ब्याह हो तो कुछ तोहफा पर लेकर जाना, और इनको करीब करने की कोशिश करना। और किसी भी तरीके से हमारा मकसद तो ये है कि दीन पर ये खड़े हो जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अली, तेरे हाथ से एक आदमी का हिदायत पर आ जाना अरब के सुर्ख ऊंटों से बेहतर है, मामूली चीज नहीं। और अगर एक आदमी दीनदार बन गया, एक आदमी सच्चा पक्का नमाजी बन गया, वो अपनी बच्चों को, अपनी नस्लों को कितना दीन के ऊपर आगे बढ़ाएगा, वो मैं और आप नहीं जानते। उन्हीं में से कोई बच्चे हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, मकतब का काम करेंगे, किसी मदरसे के मोहतमिम बनेंगे, इनकी मस्तूरात की जिंदगी में दीन आएगा, और पता नहीं कितनी खैर दुनिया में वजूद में आएगी, मैं और आप उसको समझते। एक आदमी नहीं, हम उसको 1-2 आदमी न समझे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बाजे मर्तबा एक आदमी के लिए घंटों बात करते थे। तो कोई इनको यूं कहता था कि मौलाना, एक आदमी के लिए आप अपनी इतनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। मौलाना कहते थे ये एक आदमी नहीं है, उसकी क़यामत तक की नस्लें हैं। ये जिस शोबे में गया वहाँ 2-5 हजार आदमी है, तो इसका ये नमूना बनेगा, ये लोगों की हिदायत का जरिया बनेगा। इसलिए आइंदा उसको नोट कर लो, इस बस्ती को, और तुम्हारी 3 दिन की जमात और दूसरा गश्त आपस के मशवरे से तय कर लो। और आगे हमारे यासिन साहब जी बोला, ये जो देहातों में मस्जिद बनाने की अगर सोचे ना, तो पक्की मस्जिदें बनाने की ना सोचे। हाँ, ये मिल का इनको आज के तौर पर है ना, पत्ते वगैरह का झोपड़ा बना के उसको मस्जिद बनाकर उनको नमाज शुरू करा दे। यानी 4 बम्बू, इसमें पढ़ो, 4 बम्बू कर लेवे और एक प्लास्टिक ऊपर डाल दे, ये अपनी मस्जिद बन गई। आगे एक गांव में गए तो 20 किलोमीटर चल के गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, 20 किलोमीटर चल के गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ मौलाना ने मना करा कि भाई यहाँ मस्जिद में हमारे जमात जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। मस्जिद में मौलाना ने मना करा कि भाई यहाँ जमात नहीं आती, यहाँ तुम्हारे 1-2 साथी आने का, पूरी जमात नहीं आने। हमने कहा भाई ठीक है, चले जाएंगे। अभी यूँ करके अभी तो 20 किलोमीटर चल के आए तो थक गए साथी, तो थोड़ा यूँ करके रुके। माशाल्लाह। फिर मुलाकात में गए, तो बाहर मुलाकात में गए तो एक साथी ने कि भाई खाना तुम्हारा, कहा भाई हम तो खाना पका रहे हैं। बोले नहीं, वो खाना आ जाएगा, तो एक तो दावत दे दी। माशाल्लाह। फिर मुलाकात में की तो माशाल्लाह साथियों ने बात भी सुनी और कहा कि भाई हम आएंगे। फिर थोड़ी देर हुई तो और शाम की भी एक साथी के भाई पूरा शाम की भी दावत है। फिर मौलाना आए, जोहर पड़ी, जोहर में फिर मौलाना को कहा कि भाई इस तरह हमको तो खाने की भी दावत भी दे दी है। फिर साथियों की मुलाकातें की, तो फिर इस तरह मतलब वहाँ रुके। कितने दिन रुके? वहाँ एक दिन ही रुके, फिर थोड़ा मतलब और रुकना था, लेकिन वो फिर थोड़ा मसला था तो फिर नहीं रुके। क्या मसला, तो सब हल हो गया। नहीं, वो थोड़ा इंतजार हुआ, ऐसा था। खाने की दावत देनी थी उनको कि आज शाम को आपको हमारे साथ खाना है, और घर वाले से कह देते कि आपने इमाम साहब को खाने की दावत दी। आप देखो, हमारे जहनों में इंतजार था, वहाँ तो इंतजार खत्म हो गया ना। पहले इमाम साहब ने मना किया तो इन्होंने कहा कि भाई रुकने दो। फिर एक आदमी ने दावत दी, फिर दूसरे आदमी ने शाम की दावत दी। अब मुलाकात भी हुई, रुकने का इंतजाम भी हुआ, दावत भी हुई। अब कौन सा इंतजार था?
ने वो मौलाना ने फिर कहा कि भाई बस एक दिन तो हो गया, आप तो और इनको समझा देते। मौलाना की बात का वो बच्चे थोड़ी है। मौलाना की मौलाना बात नहीं कर रहे हो, एक आदमी से इतने मुतासिर हो जाते तुम लोग। यानी जब इतना हमवार हो गया, कोई ने आपको निकाला नहीं, कोई ने मना नहीं किया, कोई ने धक्के नहीं मारे, बल्कि आपका इकराम हुआ। आप 2 दिन रुकते, 3 दिन रुकते, इसी शक्ल से हमारी जमातों में दाखिला होता है। अगर आप जहनों में ये होगा कि मौलाना ने मना किया, अब एक आदमी के मना करने से थोड़ा इनको प्यार मोहब्बत से बिठा दे। जैसे मौलाना कहते हैं, शाम को दावत दे देते, एक अतर की बोतल दे देते, उनको करीब कर दे, उनको अल्लाह उसके रसूल की बातें बतला दे। जब पूरा महल्ला हमारे मुआफिकत में था तो हमको 2-3 दिन और रुक जाना चाहिए। भाई रास्ता तो ऐसे ही होता है ना। आप यूं कहो कि बिल्कुल हमवार हो जावे और लोग हमारे लिए कालीन बिछावे तब हम पहुंचे, ऐसा थोड़ा होता है। यही रास्ता होता है कि माशाल्लाह अब खाली एक मौलाना आगे पीछे हो रहे थे, बाकी पूरा गांव और पूरी बस्ती के लोग तो आपका इकराम कर रहे। कितने वहां घर थे? मौलवी कहाँ का था? मौलवी कहाँ का था? पास के गांव के फिर क्या है? 40 के करीब का थे। 40 मकानात थे। एक दिन में कितनी मुलाकात हुई? मुलाकात में मौलाना हमने ऐसा करा था कि वहाँ जाकर किसी एक घर पे बैठ के आसपास के जितने भी लोग मर्द होते थे सबको जोड़ लेते थे। तो ये था कि वो लोग बात अच्छी सुनते थे, माशाल्लाह सब लेते थे। तो तकरीबन ऐसे असर से पहले गए, फिर असर के बाद, फिर मगरिब के बाद, फिर ईशा के बाद, ऐसे 10-12 साथी 8-10-12 ऐसे अलग अलग घरों पे जोड़ के इनको कितनी बात। मुलाकातें हुई? मैं आपको पूछता हूँ। 80% जैसी मुलाकात हो गई थी। 80 वो खेत का भी काम आपका चल रहा था जवाब ना, तो गोल गोल आता है। 40 मकान थे, 80 बालिग मर्द थे, अब 5 हुई, 10 हुई, 20 हुई, कितनी हाँ, मुलाकात वो हुई? मुलाकातें लगभग हुई थी 35 के करीब। तो बाकी की जो रह गई वो वो नहीं थे, खेत में गए थे या बाहर गए थे। तो खेत में जाते मेरे भाई। हम तो अब आपने मुलाकात असर से शुरू की, असर से पहले भी गए थे। आपको मुलाकात सुबह से शुरू कर देनी चाहिए। हमारा तालीम का वक्त पूरा होने के बाद, फजर की नमाज के बाद आप नाश्ता करके तालीम शुरू कर देते, और उसके बाद 8 बजे 9 बजे 2 घंटे का तालीम करने के बाद फिर आपकी मुलाकात शुरू हो जाती, खेतों में चले जाते। 11-12 बजे तो पहुंचे थे वहाँ, पैदल गए थे ना। अच्छा, 12 बजे पहुंचे, फिर वहाँ कितने ठहरे आप? एक दिन वही ये मस्जिद। तो 2 दिन वहाँ भी ठहरते, 3 दिन ठहर जाते हैं माशाल्लाह। चलो और आगे गांव में गए तो वहाँ मस्जिद में गए, तो इमाम साहब ने मना करा कि भाई यहाँ जमात नहीं रुकेगी। तो फिर कहा ठीक है भाई, हम तो यहाँ बाहर रुकेंगे। तो फिर एक साथी आकर ले गए कि नहीं, आप यहाँ बाहर मत रुको, हमारे घर पे रोक कर रखा है। हम कहा भाई हमको घर पे सेट नहीं होता। तो बोले नहीं, वो अलग है, आपको कोई मसला नहीं होगा। अभी तो ठीक है। फिर ऐसे अलग सा एक मकान था इनका, तो वहाँ फिर हमने कयाम किया। तो ये तो कोई ध्यानकार मानुस नहीं है। वही कोई आदमी लोग मौजूद है वहाँ पर, तो वो इस्तेमाल करने वाले हैं, अपने घरों में ठहराने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर मुलाकात में गए। हमारी बाजे जमातें जो गई ना, इमाम साहब ने और पूरा गांव के बस्ती के लोग आ गए और इनको निकालने के लिए आ गए, लेकिन वो जमात जमी हुई, वो दुआ में बैठ गई, नमाज में लग गई, जिक्र में बैठ गई। अब चालू दुआ और चालू नमाज से कोई तुमको हटा सकता है? अब उन्होंने लंबी दुआ कर दी, आधा घंटे की दुआ कर दी। अब वो इंतजार करने वाले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक इंतजार किया, फिर देखा कि यार ये तो इबादत में, ये तो जिक्र में है, ये तो कुरान की तिलावत में, ऐसे लोगों को क्या मस्जिद से बाहर करना, चलो हम ही चले जावे अपने कारोबार के अंदर। और जमात ठहर गई। प्यार मोहब्बत हिकमत के साथ हमको तो, और आपकी बस्ती में तो माशाल्लाह कोई भी गैर मानुस नजर नहीं आ रहा है। हमारे जहनों के एतबार से कि भाई ये हमको निकाल देंगे, हमको मारेंगे, आज तक 2010 से लेकर हमारी जोन की जमातें चल रही है, किसी भी बस्ती के अंदर आप लोगों की कोई पिटाई हुई?
अरे बोलो, किसी ने निकाला हमको? अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया। और आगे क्या हुआ? मुलाकात पे गए वहाँ, तो एक घर पे मुलाकात में गए, तो दस्तक दी। घर की मुलाकात पे गए, मतलब हर घर पे जहाँ भी मुसलमान के घर थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अलग फिरके के हैं, हम तो ये वो करने लगे। फिर समझाया, और औरत भी आई पीछे, इनकी बीवी, कि भाई हम तो सुन्नी है ना, आप तो ये। फिर इनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, ये तो मेहनत है अल्लाह रसूल की, ईमान अमल की, कलमे नमाज की, ऐसे ये कोई फिरका नहीं है, ऐसे समझाया। थोड़ा इनको इंटरेस्ट पड़ा। फिर कुछ हालात के एतबार से भी बात की, तो बहुत खुश हुए। और उसके बाद भी वो मिलने आए, बाद में जो जमात एक जगह थी तो वहाँ भी आए। फिर समझाया इनको कि नहीं ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई देखो आपके गांव में मुसलमान हैं और ऐसे हालात हैं इनके कि वो शिर्क में मुब्तला है, तो हमें तो बाद में पूछोगी, पहले आपकी पूछोगी, इसलिए कि आपका घर करीब है, आपके 2-4 घर छोड़ के आपके मोहल्ले में लोग शिर्क में मुब्तला हैं, तो आप इसकी फिक्र करो। तो बोले ठीक है इंशाल्लाह। यानी समझाने से समझ गए ना। हाँ, देखो कितना आसान काम है। अपन जब उस औरत का काम सुननी है कि भाई हम सब सुननी है। कहा मौलाना, ऐसा ही कहा। फिर वो भी समझ में आई इनके भी सब बात। कहने का इनको साथ में मिला के है, हम भी सुनने, ऐसे नहीं कहने का, हम सब सुननी है भाई। माशाल्लाह। एक आगे एक गांव में गए, तो वहाँ किया था, तो वहाँ मुलाकात की। हमारे साथी गए, जाके पहुँचे, मुलाकात में गए, तो तो जरा काम करके तो शानदार कारगुजारी सुनाओ ना, क्या को घबराते हो? और मौल अच्छी तरीके से सुनाओ। साहब गांव का नाम भी बोलेंगे, कौन से गांव गए वो? ये गांव का नाम भी बोलो ताकि वो अतराफ के देहात वाले उसको नोट कर ले। यानी पक्की तक बात करो, हमने मुलाकातें की, हमने यूं किया नहीं, फुला गांव था, इतने घर थे, इतने मुसलमान थे, इतने लोगों की मुलाकात हुई, माशाल्लाह सबने हमारा इस्तेकबाल किया, ताकि एक गांव वाले आइंदा अतराफ के जिले वाले या जो हल्का लगता है वो उसको नोट कर ले। कौन सा गांव था ये उनको बतलाओ। नागड़ का की वो कारगुजारी की, मस्जिद में नहीं गए। और अभी ये किसके करीब में है? हमारे अब इसको नोट कर लो। हाँ, खैर जी वाले। यानी हमारा ये पूरे पांचों हलके के जिम्मेदारों को बुलाने का मकसद ये है कि हमारी जमातें तो अपने जोन में नहीं चली और जोन में चलिए, अब उसके देहातों के अहवाल आपके सामने आ रहे, अब उसको नोट कर लो, नीयत बनाओ, आइंदा उसको जमाते भेजे, हम खुद जावे और वहाँ अल्लाह पाक दीन को वजूद दे देवे, उसकी दुआ हो और उसकी फिक्र, उसके अजाइब, उसकी नीयत है, तो अल्लाह पाक काम को आसान कर देंगे। तो ये नोट कर लो भाई ये गांव को। चलो गांव में गए, धर्मट करके गांव था। अच्छा, जोर से बोलो ना कौन सा गांव? ऐसे बोला था कि हमको सुनाई नहीं दे रहा। धर्मट करके एक गांव था। धर्मोट। धर्मट। चलो तो वहाँ हम लोग वहाँ पहुँचे, मस्जिद मतलब वो मदरसा था, थोड़ा इबादत खाना जैसा, इबादत का जैसा। फिर साथ ही मुलाकात में यानी गए। इबादत खाना था ना, हाँ, इबादत। तो इबादत खाने जैसा काय को बोलते हो? इबादत खाना था ताकि लोगों के जहनों में आवे कि वहाँ इबादत खाना है, जमात जा सकती है हमारी। माशाअल्लाह। फिर वो मुलाकात में गए साथी, तो दो एक साथी मिले, उनको कहा कि भाई इस तरह जमात आई है, तो आप तो लेकर आए अंदर। माशाअल्लाह। तो हम लोग, वो तो मुलाकात वाले तो गश्त में गए थे, मतलब मुलाकात, तो फिर उनको बिठा के बात करी, ईमान यकीन की, आखिरत की, सब समझाई बात। कुछ इश्कालात किए इन्होंने कि भाई हम ऐसा ऐसा, फिर जहन बनाया इनका, तो नमाज वगैरह पढ़ने की फिक्र दिलाई है वो। फिर वो तो चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह खबर आई कि वो नौजवान थे, मतलब 31 साल की उम्र थी, 30 में उनका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ। जो तुम्हारे पास जमात के पास बैठ के गए थे, दावत का भी किया, खाने की दावत का भी, और दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। तो फिर गांव वालों को पता चला कि ऐसा ऐसा। तो पहले तो हम गए थे, तो इन्होंने मतलब
बात भी तवज्जो नहीं दी, सुनते नहीं थे। लेकिन फिर हम दूसरे दिन गए, जब ये एक्सीडेंट हो गया तो उनके घर भी गए, जाए मतलब इनका घर था जो ताज़ियत करने गए। ताज़ियत के लिए। माशाअल्लाह, ये अच्छा किया। और वो मोहल्ले में जहाँ मतलब ये मुसलमानों के घर थे जहाँ, तो फिर इनको पता चला कि इस तरह ये जमात वालों के पास गए थे और मिले थे, तो फिर सब मुतासिर हुए मतलब थोड़ा। तो माशाल्लाह बहुत सारे साथी जमा हुए, फिर इनके सामने जम के आधा एक घंटा बात हुई, माशाअल्लाह। तो खुश हुए वो लोग सब, थोड़े दिल भी नरम थे, मौका अच्छा था तो और भी बात करो के। फिर पौना घंटा एक घंटा तक सबके सामने ईमान यकीन की बात करी, फिक्र दिलाई इनको। तो फिर थोड़ी ये नियत करवाई कि भाई नमाज को भी आप पाबंदी के साथ चालू कर दो, सबके सब साथी नमाज के लिए आ जाओ। वही सब बातें कोई बताई हाँ इनको। कुछ इज्तिमा की दावत दी, हाँ इस्तेमाल की कुछ 3 दिन वगैरह की कुछ दावत दी। वो बता रहे थे उनको भी 3 दिन का भी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लेते थे उसको। तुम ज्यादा नहीं ये ना मायूस होने की बातें क्यों करते हो? नहीं मौलाना वो गैर मानुस लोग अरे थे बिल्कुल नहीं अपने। गैर मानुस। अभी जितनी कारगुजारी बयान की, हर बस्ती में लोग मानुस है, तुमसे मिलते हैं, तुम्हारे खाने की दावत करते हैं, फिर मानुस किसको कहते तुम लोग? अपने जहनों में तुम लोगों ने बिठा रखा है कि हमारे इलाके में सब देहात ऐसे ही है वैसे ही है। एक जगह हम गए थे तो आप लोग वहाँ सुनते हैं ध्यान से, फिर सोचो कि हम जो सोच क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हर देहात में लोग मौजूद हैं। अगर वहाँ का इमाम भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए वो खड़े हो जाएंगे, तुम क्यों रोकते हो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नरम बातें, नरम दिल हो गया, लोगों ने बातें सुनी। ये तमाम हमारे प्लस पॉइंट है। एक जगह हम गए गांव में, तो वहाँ मस्जिद में तो मना करा, तो फिर एक जगह हम रुके, खुली जगह किसने में। मना किया? तो साथी वहाँ के साथी थे, तो जमा की तो बोले मस्जिद में नहीं जाने का तुम्हारे, मस्जिद में यहाँ क़याम नहीं है। पर ठीक है भाई, हम तो और कहीं भी रुकेंगे। फिर एक साथी आया कि भाई ऐसा करो आप यहाँ हमारे यहाँ रुको, खुली जगह थी, टेंट डाल के, थोड़ा पानी भी था वहाँ तालाब के किनारे। ये जो तुमको रोकने वाला था कितनी उम्र का था? वो सदर था मस्जिद का मौलाना। सदर को छोड़ो, उम्र कितनी थी उसकी? उसकी उम्र थी लगभग 50 साल के हाँ, तो आसपास। फिर उससे तो थोड़ी बैठ के बातों कर ले। करी मौलाना बात, नहीं तुमने कहा हमको कहा मस्जिद मत जाइयो, समझाया उनको। मत ठहर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ थोड़ा हमारे इख्तिलाफ हो जाता है, इसलिए जमात को नहीं रुकते, समझाया। तो वहाँ रुके थे, तो शाम को फिर बारिश आ गई दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा। तो पहले तो गांव में मतलब कुछ खास वो नहीं था, लेकिन जब बारिश आई तो सब भीग गए, हम भी भीग गए, हमारा सामान भी भीग गया, साथी भी। तो फिर गांव में से रात को मतलब मगरिब के बाद ईशा से पहले एक नौजवान लड़का आया कि मेरे वालिद साहब ने कहा है कि चलो आप हमारे घर रुको, यहाँ खुले में बारिश भी आ रही है, सब भीग गया है। हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, घर में तो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा करो आप पहले आके देख लो। तो फिर दो साथी हमारे गए, वहाँ जाके देखा तो वो रुकना मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो मस्तूरात वगैरह का भी मसला था। तो फिर हम लोग नहीं रुके वहाँ, वहीं रुके। फिर वो पड़ोस में गेड़िया वाले आए और साथियों को ले गए। उस बस्ती में फिर आगे नहीं ठहरे? नहीं उसमें नहीं चले, फिर बारिश बहुत ज़्यादा चालू हो गई थी, कितनी देर बाद? वो फिर चालू ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी बारिश। टेंट लेके नहीं गए थे आप लोग? टेंट था ना वहाँ, तो टेंट पे तो क्या बारिश आएगी? वो बहुत ज़्यादा थी बारिश, टेंट भी भीग गया था। टेंट तो भीगता है, पर टेंट भीग के पानी अंदर भिगता है। नहीं, वो आंधी तूफान जैसा भी था ना, थोड़ा ऐसे सामान भी सब अरे अगर थोड़ा जम जाते मेरे भाई तो काम हो जाता। यानी
थोड़ा मुजाहिदा, ऐसे तो बहुत से बारिशों के अंदर और बहुत से इलाकों के अंदर आदमी बिकते ही है। हम अल्लाह के दीन की निस्बत पर थोड़े जम जाते तो माशाल्लाह उस बस्ती में काम हो जाता। चलो आगे। यहाँ एक आपके जगह साथ कितने लोगों ने तालीम में और दावत की मेहनत में गश्तों में शिरकत की? तकरीबन 40 आसपास 40 माशाल्लाह तालीम में बैठे थे। तालीम में बैठ के नमाज पढ़ी। अच्छा, कुछ लोगों ने आपके साथ एक दिन आधा दिन कुछ लगाया? 2-4 घंटे लगाते थे। 2-4 घंटे लगा, दो बहुत बड़ी बात दो है। जगह पूरा दिन लगाया, मतलब जमात रही है वहाँ तक 24 घंटे। अच्छा, वहाँ मस्तूरात का क्या हाल था? मस्तूरात में कुछ प्रोग्राम हुआ कहीं? एक जगह प्रोग्राम हुआ था, मस्तूरात में बात हुई थी। बाकी तो मस्तूरात में ऐसा करते थे कि जब मुलाकात में जाते थे तो मर्दों को एक साइड, सब मर्दों को करके बुला लेते थे और मस्तूरात बाजू में, मतलब बात सुने नहीं इस तरह जमा उनको बोल देते थे कि वो औरतें हो ना तो ये अंदर रूम में बिठा दो। तो बहुत सारी जगह ऐसे मतलब मस्तूरात की बात सुने इस तरह बात करते थे। वो तो ऑटोमेटिक आप नहीं कहो तो भी मस्तूरात तो मुतवज्जो हो ही जाती है। हमको तो इस तरीके से बात करने का है कि भाई मर्दों के साथ मस्तूरात के कानों में भी बात पड़े, और अगर मस्तूरात का जहन बन गया तो माशाल्लाह पूरे खानदान और पूरे घराने का जहन बन जाता। तो आपने एक ही जगह जोड़ किया और जगह जोड़ नहीं कर सके? नहीं, वो काबू में नहीं आते। क्या काबू में नहीं आने, क्या मना किया लोगों ने? यानी वो मस्तूरात पे जुड़ती नहीं थी वहाँ। उनको बताते थे कि भाई यहाँ औरतें तो एक दूसरे 5 मरतबा क्या उनके थोड़ी नाइत्तेफाकी जैसा होता था, कम कर होते थे। तो अपने को इससे क्या है, अपने तो इनको जोड़ लेते, दीन ईमान की हाँ, बातें तो कर लेते। इसीलिए फिर जहाँ जिस घर की मुलाकात करने जाते थे ना वहाँ मस्तूरात बात सुने इस तरह बात कर लेते थे, मतलब वो एक दूसरे के यहाँ जुड़ते नहीं थी। कितना रोजाना चलते थे? पैदल जमात आपकी चली? हाँ, पैदल चलते थे। कितना चले? टोटल 180 किलोमीटर जैसा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के दीन की निस्बत पर इतना चलना ये बहुत बड़ा काम है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत थी। हमारे नबी ताइफ पैदल गए, आपकी जमात भी पैदल चली माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ज्यादा से ज्यादा कितना चले? 20 किलोमीटर। कब से चले थे? सुबह से? हाँ, वो फजर के बाद अव्वल वक्त फजर पढ़ के निकल जाते थे हम पैदल, लेकिन शुरू में क्या गर्मी बहुत थी ना तो होल्ड भी ज़्यादा करना पड़ता था रास्ते में। कितने और बजे पहुंचे? वहाँ लगभग 12 बजे, 11:30। अच्छा, बहुत मुजाहिदे को बयान नहीं करने का। गर्मी बहुत थी, बहुत होल्ड किया। अरे भाई, गर्मी तो पूरी दुनिया में चलती है ना, गाड़ियाँ चलती है, कारोबार चलते हैं, दुनिया का निजाम चलता है। कोई तस्करा करता है? बम्बई गए, बहुत ठंडी थी, आके कोई ने तस्करा किया? धंधा छोड़ता है कि गर्मी में बहुत गर्मी नहीं जाना? नहीं, वो 11 बजे इसलिए लेट पहुँचे कि उस वक्त मतलब सुबह फजर बाद वैसे नहीं तो माशाल्लाह, पहुँच आप जाते इतने थे। कहते हो कि 11 बजे पहुंच गए। गर्मी तो घर में घुसती है। माशाल्लाह। और ये आपकी पहली जमात थी? पहली जगह। अच्छा, इज्तिमा की दावत दी लोगों को? हाँ, वो यहाँ अपने इज्तिमा के पास में एक गाँव फिर है, आहिस्ता हो गया बहुत। आप जोर से बोल। सुसिया गाँव है, वहाँ गए थे हम। बात नहीं है यार, मुझे बहुत हिम्मत से बात करनी चाहिए ताकि दूसरों में हिम्मत आवे। सुसिया एक गांव है यहाँ पास में, वहाँ एक ईंटों के भट्टों पे बहुत सारे मुसलमान काम करते हैं, वो मजदूर है। तो इससे पहले भी गए थे इनकी मुलाकात में, जब पहले राउंड में हमारी जमात चली थी उस वक्त। तो उस वक्त तो ज़्यादा मतलब वो नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो अभी इज्तिमा के 3-4 दिन पहले गए थे, फिर जमात भी थी तो जमात के साथ लोग भी लगे थे। तो उनका जो सेठ था उससे मुलाकात हुई, तो उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा इकराम किया, बिठाया और तकरीबन दोनों भट्टों पे 1-1, 1.5 घंटे बैठे। जो साथी मौजूद था उनको बुलाकर बात करी और इनको बात समझाई, ये इज्तिमा के उन्वान को समझाया। इज्तिमा की दावत दी? हाँ, इज्तिमा की दावत दी। आज आएंगे वो? हाँ, वो आज आएंगे। कोई बुलाने जाएगा? हाँ, अभी कौन जाएगा?
हम साथी तय करें हमारे कौन साथ। कौन तय हुए? वो हमारे साफिन भाई है और मकामी एक जाएंगे मौलाना ना? है। कब हाँ, जाएंगे? अभी आज का अब दिन उनको का है बुला तो- के लाओ और अपने साथ रखो। अब गाड़ी कौन सी लेके जाओगे? ये 4 व्हीलर में काम नहीं लगता, तो टेम्पो मेम्पो के साथ लेके जाओ ताकि वो तैयार तो उनको बिठा के लेके आ जाओ। वो गाड़ी का मौलाना इनको बोला था तो वो बोले गाड़ी लेके मत आइयो, हमारे पास गाड़ी है, हम सब मजदूर जो भी है 40-50 जितने भी है उन सबको गाड़ी में बिठा कर आपके यहाँ आएंगे। उनके यहाँ मजदूर काम करते हैं। हाँ तो लेने जाइए फिर। हाँ इंशाल्लाह। और अपने साथ रखना, खिलाना पिलाना, उनको पूरा अहवाल बतलाना, हर नमाज के बाद इनको प्रोग्राम में आगे बिठा देना, जैसे अपना रिश्तेदार, अपना बेटा, अपना सगा भाई होता है ना, इस तरीके से इनके साथ मामला करना, ताकि उन्होंने ये माहौल कभी देखा नहीं। ये पहली मर्तबा इतना बड़ा मजमा, नमाज, तालीम, बयान, ये सब पहली मर्तबा सुने। ठीक है इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। ये तुम्हारे भट्टों में कहाँ के लोग आते हैं काम करते जी मौलाना, हैं? भट्टों में कहाँ के लोग आते हैं काम? ये यूपी के है मौलाना, उनका सेठ भी यूपी का है तो वहीं से लेकर आते हैं यूपी से। हाँ, वो लोग यहाँ जमीन रखते हैं और ईंटें बनाते हैं। कितने देहात किए कुल रफीक? 28 कयाम के और 17 मुलाकात थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सब ऐसे देहातों में आप गए हैं जहाँ आमतौर से ठहरना मुश्किल था। अल्लाह जज़ाक दो जगह जो है ना वहाँ समझो जमात पहले गई नहीं है, एक जेजरी और ये एक अपने सेडला, पहली मर्तबा। बड़े गांव है मस्जिद वाले। कैसा रहा वहाँ? एक जगह तो बहुत अच्छा काम हुआ, सेडला में गांव वाले मतलब मुलाकात में तो गए थे, लेकिन फिर रात शाम को एक गेडिया वाले भी साथी आए थे तो सबको जमा करा था वहाँ। तो नौजवान माशाल्लाह 15 एक साथी जमा हुए थे नौजवान। फिर इनको सब मतलब 2-3 घंटे अंदर से लेके ईशा के बाद खाने का भी प्रोग्राम इनका रखा था, तो खाना भी इन्होंने वहीं खाया। और बिल्कुल मतलब काम के एतबार से कुछ इनको इल्म नहीं था, तो फिर पूरी बात समझाई। असर से लेके रात को 10:30 बजे तक बैठे थे। फिर हमको झोंके आने लगे तो उन्होंने खुद ने कहा कि अब ऐसा करो आप सो जाओ। फिर चले गए 10:30 बजे। यानी मतलब पूरी बात करी इनको हालात के एतबार से और मतलब दिन के काम के एतबार खिलाया ना से। इनको, माशाल्लाह बहुत अच्छा इकराम किया। 15 आदमी को खिलाया, अल्लाह कबूल फरमा। माशाल्लाह भाई, और जमा ला दो। कितना चले पैदल? 180 180। अब तो जमाती पूरी 9 साथी थे, उसमें 6 साथी 4 महीने वाले थे। उसमें 18 दिन लिए गए थे कयाम में, नल सरोवर 18 दिया दिए थे हमें और मुलाकात के 16 दिया। सबसे पहले वहाँ धांगध्रा जॉन में काम किया। धांगध्रा जी, धांगध्रा का जो 18 बस्ती आपको दी थी, जी, उसमें से मस्जिद मदरसा वाले कितने थी? उसमें से 6 थे, ऐसे इसमें मस्जिद नहीं है, बाकी सब में मस्जिद मदरसा था। बड़े गांव थे वो सब, वो मोरबी के और सब वहाँ मोरी है, साइला है, वो वहाँ से भी 40-50 किलोमीटर दूर है, धांगध्रा से भी। तो उस मस्जिद मदरसे में आपका कयाम कर सकते थे? नहीं, कहीं भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन हम वहाँ गए तो गुज़िस्ता जो जमातें चली थी हमारी, तो कारगुजारी थी लिखी हुई नोट के अंदर, तो सब वहाँ हमने पढ़ा और वहाँ उसके अंदर एक लाइन सेम लिखी थी कि भाई यहाँ कयाम की इजाज़त नहीं है, हिकमत से काम करे। तो हमने हमारी जमात को पूरी बिठाया और हमने इरादे करे, अज़ाइम करे कि इंशाल्लाह हर जगह हमने कयाम करना है। फिर वहाँ से हमने शुरू किया, वहाँ के मेजबान जमात को भी बोला कि कहाँ से शुरुआत करें, हम तो नए थे। तो फिर ये वो यहाँ ज्योति होटल है हमारी, वो साइड से हमने शुरू किया। धांगध्रा से ज्योति होटल 10 किलोमीटर होती है दूर, और वहाँ से पैदल 10 किलोमीटर गए। अब ज्योति होटल के अंदर 22 का स्टाफ है, और उसके अंदर भी हमारा यहाँ एक गांव है जैनाबाद, जो बिल्कुल वहाँ जमाते नहीं जाती, तो वहाँ के भी स्टाफ था। तो हमने उनकी मुलाकात की भी बैठ कर माशाल्लाह खुसूसन, और उनको फिक्र दिलाई और उनका जहन बनाया।
और वहाँ ठहर कर हम बंजर जो बस्तियाँ थी और एक मकान वाले एक राजगढ़ गांव है, हरिपर गांव है, वहाँ भी साथी गए मुलाकात के लिए। तो एक गांव के हरिपर के अंदर हम गए। ये जो 22 का स्टाफ था जी वहाँ क्या काम हुआ? वहाँ नमाज हो रही है, तालीम का अमल हो रहा है, उसमें से किसी ने कुछ वक्त लगाया हो पहले? जी वहाँ जो है वो जैनाबाद वाला वक्त तो नहीं लगाया, लेकिन हमारे साथ में कुछ तालीम में शिरकत की और एक साथी ने 1 दिन लगाया हमारे वहाँ। 2 दिन हम ठहरे थे और उसके अलावा वहाँ अंदर नमाज होती है? जी नमाज होती है वहाँ पर। 5 वक्त होती है? जी 5 वक्त की नमाज होती है, किया भी है, 5 वक्त की नमाज होती है। और दूसरे बाजू के जो होटलें थी वहाँ गए, उनको भी हमने तरगीब दी। तो हमने वो प्रिंस होटल है एक, वहाँ बाहर का स्टाफ है, वो तो माशाल्लाह वो भी वहाँ नमाज पढ़ते हैं। और दूसरे भाग्योदय होटल है, वहाँ 2 आदमी थे मुसलमान। हमने कहा तो बोले हम यहाँ नमाज पढ़ लेते। हमने कहा बहुत दूर नहीं, आप वहाँ आ जाओ जमात के साथ में, वहाँ नमाज पढ़ो और आप भी शिरकत करो आप अखबार से। ऐसे वहाँ काम किया। और दूसरा एक गाँव हरिपर था, वहाँ गए और वहाँ हमने कहा नमाज तो हो रही थी, उसके आगे कोई तालीम मशवरा हफ्तावारी का दिन गश्त करे और अतराफ की होटलों की मुलाकात का निज़ाम ऐसा कुछ कायम किया? जी वहाँ के जो जिम्मेदार वो होटल के मालिक थे, उनको हमने कहा कि भाई आप वहाँ जो बंजर बस्तियाँ हैं उनकी भी फिक्र करो। और माशाल्लाह फिक्रमंदी है, वो साथी अक्सर वहाँ से लाते भी है, नमाज भी पढ़ाते। देते बैठ कर कि भाई ये वक्त तालीम का। विरंगाम के हैं वीरंगा के प्रॉपर के ही जी, विरंगाम के है, वो मोमन के होटल है। नहीं विरंगाम के ही पोपर कांची बिरादरी है। और दूसरी जो होटल वो मोमन की थी, प्रिंस होटल। दूसरी होटल मोमन की है। हाँ जी। फिर वहाँ से आगे हमारा दूसरा गाँव का भराड़ा, और वहाँ से 10 किलोमीटर होता था। वहाँ से पैदल माशाल्लाह भराड़ा हम गए और वहाँ जाकर माशाल्लाह सबसे पहले मस्जिद के अंदर गए। और मस्जिद में जाने के बाद हमने पहले दुआ कराई। दुआ कराने के बाद साथी को हमने मशवरा किया और 2 साथी को खिदमत में भेज दिया, आप खाना पकाना शुरू कर दो। और फिर तालीम शुरू हमने कर दी। अब तालीम के बाद तालीम शुरू थी और 2 आदमी आए और आकर हमको कहा कि पापा यहाँ से निकल जाओ। हमने कहा हम तो अभी चल के आए, पैदल आए, दिन को सीखने के लिए आए, तो नहीं यहाँ जमात नहीं ठहरते, आप निकल जाओ। हमने कहा कि हम तो यहाँ खाना खा के चले जाएंगे। बोले नहीं अभी निकल, खाना भी नहीं खाना, आप निकल जाओ। हमने कहा थक भी गए साथी, थोड़ा आराम भी कर ले, तालीम भी चलो, अभी तालीम में शिरकत कर लो। उन्होंने कहा आपने किसकी इजाज़त ली? हमने कहा भाई हम तो अभी 2 साथी आ रहे थे आपकी दूसरी मुलाकात के लिए निकले थे, लेकिन आप ये भी मिल गए हमको, हम आपको मिलने के लिए आ रहे थे। बोले नहीं यहाँ जमात नहीं ठहरती, आपको निकल जाना है यहाँ से, ठहरना नहीं है और दोपहर के बाद आप निकल जाना है, ऐसे कह के वो निकल गए। फिर हमने तालीम की, तालीम के बाद वो 2 साथी को हमने गाँव के अंदर भी भेज दिया। 2 जमातें बनाई और सारी मुलाकात हो जाए उसके एतबार से। और मुलाकात में गए, लेकिन मुलाकातें हुई नहीं, क्योंकि दोपहर का वक्त था। आमतौर से वो 2 मकान के में मुलाकात हुई बैठकर, बाकी मकान नहीं मिले, क्योंकि सारे मकान अलग अलग, सब गाँव बहुत बड़ा है और मुसलमान एक जगह रहते नहीं। तो 2 मकान की मुलाकात जोहर से पहले हुई। उसके बाद हम आ गए, जोहर की नमाज पढ़ी, तो वहाँ वो जुब्बा लटकता पता था मौलाना इमाम साहब होंगे यहाँ पर। तो फिर कोई आया नहीं जोहर के अंदर। 2 साथी नमाज पढ़ने के लिए आए, फिर हमने ऐलान भी किया, बात भी की। और बात के बाद वो साथी जाल उनको बिठाया हमने बात के अंदर और फिर उससे हमने बात की कि फिर जैसे कितने मकान, बोले 60 मकान है। तो हमने कहा 2 ही नमाजी, बोले हम 2-3 नमाजी हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा फिक्र कर सबकी मुलाकात कर लेंगे, हम भी आएंगे मुलाकात के लिए, कोई बात नहीं मुलाकात करेंगे, ऐसा कह के वो चले गए। उसके बाद वो 3 बजे दोबारा आए वापस, बोले आप अभी तक निकले नहीं, हमने आपको कहा था। हमने कहा भाई हम तो निकलने वाले थे, लेकिन वो साथी आपके 2 आए, कोई इमाम साहब भी नहीं आया, नमाज भी नहीं हुई। तो हमने सोचा पूरे गांव की मुलाकात कर ले, 50 घर है, मुलाकात 50 घर के हम निकल जाएंगे। तो बोले नहीं अभी तो आप निकल ही जाओ, अभी आप सुबह में हमने आपको कहा था आप निकल जाओ, आप नहीं निकले। तो हमने कहा नहीं मुलाकात करके हम निकल जाएंगे। तो वो ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। फिर हमने उनको समझाया, लेकिन समझ में उसको आता नहीं था। दूसरे आदमी का भी फ़ोन आया, निकल ही जाओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी मस्जिद है, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, आपने मेरी इजाज़त नहीं ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ के ट्रस्टी हो तो हम तो बाहर रह जाएंगे, बाहर में कोई बात नहीं, कि आपको जहाँ रहना वहाँ रहो, मस्जिद में मत रहो। तो हमने साथियों से कहा कि अपना सामान ले लो। मस्जिद के बाहर जो पूरा रास्ता था तो उसको साफ हमने किया और वहाँ अपना कपड़ा बिछा दिया। और वहाँ कपड़ा बिछाने के बाद हमने उस तालीम दोपहर की शुरू की। और साथियों को कहा कि आप चाय बनाना शुरू कर दो। फिर वहाँ गैस लगा के वो साथी चाय बनाने लगे। फिर वो हिंदू औरत थी, वो भी आई, सब देख रहे थे, बोले क्या हो रहा है सब। फिर तालीम भी हुई और सब देखने लगे। वो औरत ने कहा क्या हुआ भाई, मस्जिद तो है आपकी,
हमने कहा वो तो नहीं ठहरने देते, उसने लॉक लगा दिया मस्जिद का। हमने कहा नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, बोला नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे आपको। तो फिर हमने वहीं बाजार में नमाज पढ़ी, वो तो दूसरा असल में वो आए नहीं नमाज, हमने बाहर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हमने 2 दिन की जोड़ी बनाई और सबकी माशाल्लाह मुलाकात के साथ को भेज दिया। मगरिब हुई, मगरिब के बाद भी वो मुलाकात के मतलब तरतीब बनाई सब साथी की माशाल्लाह। हद को ढूंढते थे, ढूंढ कर मुलाकातें करते थे। 25-30 हमारी वहाँ मुलाकातें भी हुई। और उसके बाद मगरिब के बाद ईसा से पहले वो पूरा गांव जमा हो गया मुसलमानों का, सब मुसलमान है 20-25। और मस्जिद के अंदर गए और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, हमने बाहर नमाज पढ़ी। और मस्जिद के नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी शादी को अंदर भेजो। फिर हम अंदर गए तो बोले आप यहाँ से निकल जाओ। हमने आपको सुबह से कहा यार अभी तक आप निकलते ही नहीं हो, रात हो गई, अभी हमारे यहाँ झगड़ा हो जाएगा हिंदू मुसलमान का। हमने कहा क्या होगा, क्यों झगड़ा हो जाएगा? बोले वो हिंदू कहते हैं कि यहाँ हमारे मेहमान है, गाँव के मेहमान है और बाहर ठहरे हुए हैं, तो हम थोड़े बात है, हम तो अंदर ही थे, आपने हमें बाहर निकाला है। बोले नहीं आप यहाँ से गांव छोड़ के चले जाओ। हम कहा रात में हम कहाँ जाओगे, रात काम छोड़कर? तो एक काम करो मस्जिद के अंदर आ जाओ, मस्जिद में रात गुजारो, लेकिन सुबह चले जाओगे। हमने कहा सुबह में इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। और फिर वहाँ सारे 20-25 आदमी थे, सबको हमने बात भी की कि हम तो आप तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ने यहाँ का जिम्मेदार बनाया, आपका तो काम मस्जिद को आबाद करना है और हम क्यों आए? बोले कि हमारे यहाँ जमाते वो दावत इस्लाम वाले आते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आते तो हम साथ में मिलकर दोनों मेहनतें करेंगे। बोले नहीं आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा। और फिर रात को 2 साथी बैठे थे, उनका भी जहन हमने बहुत बनाया। एक नौजवान आया, पूरी रात को 12 बजे तक हमारे साथ में वहाँ बैठा है, अंदर रहे माशाल्लाह। और उसके बाद सुबह दोबारा फजर की नमाज़ पढ़ी है हमने। फजर की नमाज़ पढ़ के दूसरा देहात था थरा, वहाँ 8 मकान थे, वहाँ से 7 किलोमीटर था माशाल्लाह। पैदल वहाँ से गए हम थरा में, वहाँ भी माशाल्लाह मुलाकातें हुई। और वहाँ हजाम बिरादरी है। और 2 दिन कयाम कर लेते हैं, दूसरा दिन भी जैसे पहले दिन माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत से एक ऐसा आपने पूरा दिन गुजार लिया। और बाहर निकलने के बाद अल्लाह पाक ने इंतजाम करके रात को मस्जिद में ठहरा दिया। 1-2 दिन और कयाम कर लेते। ये मौलाना वो अंदर जो ठहरा है ना, वो शर्त पे ठहराया था कि आप सुबह में चले जाएंगे तो हम आपको अंदर ठहरा दें। अच्छा, और मामला बहुत बिगड़ रहा था, यानी वो ज्यादा ये मस्जिद में पहली मर्तबा जमात ठहरी? जी हम पहली मर्तबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो गया। अब देखो ये जमात का तारुफ हुआ, कुछ लोगों ने बात सुनी, कुछ लोगों ने मुआफिकत की। आइंदा चलकर ये आपस में मुजाकरे होंगे, अल्लाह पाक इनके दिलों में बात डालेगा। भाई जमात आई है, वो तो मस्जिद को आबाद करने की फिक्र में थी। और कुछ सलीम उत्तबा लोग होंगे, वो आइंदा कोई जमात जाएगी तो उसको और ठहराई। इसी तरीके से जहन बनता है और इसी तरीके से मस्जिदों के दरवाजे खुलते हैं। एक आदमी ये जहन में रखे कि जाने ही नहीं देंगे, निकाल देंगे, हमको यूं कहेंगे, हमको यूं कहेंगे, ये जहनों के साथ तो कभी भी आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। माशाल्लाह कितनी अच्छी प्यार मोहब्बत से इन्होंने टेकल किया। हम यही चाहते हैं कि हमारी पहले तो हम मस्जिद में दाखिल हो जाए। अगर कोई मसला आता है तो हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मस्जिद के बाहर ठहर जाएंगे। अगर मस्जिद के बाहर भी नहीं ठहरने देते और थोड़ा किनारे पर, गांव के किनारे पर ठहरेंगे। अगर वहां पर भी नहीं ठहरने दिया तो किसी के खेत में जाकर ठहरने। यानी हमारा हदफ ये होना चाहिए कि इस बस्ती में अल्लाह के दीन की मेहनत जिंदा हो जाए। और हम जब मेहनत करके शुरू करेंगे, फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, अगर तो किसी बात को तय कर लेता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं पुख्तगी के साथ तय कर ले तो फिर अल्लाह की मदद आए। अल्लाह के भरोसे पर हम काम करते हैं। ऐसे ही बस्तियां पूरी दुनिया में खुली है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हमारा गुजरात, पूरा हमारा ये जिला ऐसा ही था। एक एक करके माशाअल्लाह अभी आपके सामने कारगुजारी होगी कि गुज़िश्ता साल से इस साल मेहनत के दरमियान में कितनी जगह कश्त जिंदा हुआ, कितनी जगह तालीम जिंदा हुई, कितने मस्जिदें नई क़याम की खुली, तो माशाल्लाह आपके सामने कारगुजारियाँ होगी। इसलिए हमारे साथी हिम्मत के साथ काम को आगे बढ़ावे माशाल्लाह। चलो और आगे। माशाल्लाह वो गांव बहुत नरम गांव है, 2-3 ही आदमी ऐसे हैं जो सबको भड़काते हैं, बाकी मजमा तो बहुत नरम है। मकामी साथी माशाल्लाह वहाँ मेहनत करे, दूसरा कस करे, काम हो सकता है। उसके बाद किसके करीब है बस्ती? धांगध्रा। बोला असल में क्या, धांगध्रा से वो साथी भी कम है। धांगध्रा खुद एक बंजर बस्ती है, 10 मस्जिदें धांगध्रा के अंदर है, एक ही मस्जिद में काम होता है। और वो साथी बजाने वाले उसको ले लें तो वहाँ से काम हो सकता है। धांगध्रा में मुसलमानों के घर कितने? धांगध्रा बहुत बड़ी
कितने मकान और 4 मिनट चिल्ले वाले कितने हैं? भांगड़ा में 25-30 हजार मुसलमान थे। फिर इतना बड़ा मुसलमान की आबादी है और 4 मिनट चिल्ले वाले कितने होंगे? चार साल 4 साथी। 4 साथी 4 महीने वाले, दूसरे 8-10 साथी चिल्ले वाले, बस 10-12 साथी चिल्ले वाले। तो ये 12 साथी तय कर ले गए, कमजोर काय के? अरे भाई मूसा इब्न उमैर तो अकेले थे ना, उन्होंने पूरा मदीना मुनव्वरा के हर घर में इस्लाम को दाखिल करा दिया। आपके 12 साथी होंगे तो इंशाल्लाह 120 हो जाएंगे, फिर 1200 हो जाएंगे। ये 12 साथी ये देहात की थोड़ी फिक्र कर ले। कौन है धांगध्रा के यहाँ? 4-5 साथी अहमदाबाद चले गए हैं, जो जिम्मेदार किस्म के ये निकाल के उन्होंने कहा 12 साथी है अभी। मैं गए साल भी गया था, कुछ 6-7 साथी वहाँ हैं। आदमी तो अहमदाबाद तक चले गए, रहने लगे। 3-4 साथी अहमदाबाद चले गए। तो ये 6-7 साथी भी कुछ ना कुछ तो करे। 5 चिल्ले वाले, 3-4 महीने वाले वहाँ बचे। मुसलमान तो है ना सब, मानुस तो है ना। अच्छा वहाँ से कितने लोग इज्तिमा में आए? अभी 7-8 साथी आए, और कितने आते हैं हमेशा? 25 तो हो जाएंगे। तो फिर ये हमारे साथी हुए ना। अच्छा कितने लोग आपकी बात सुनते? बात तो सब सुनते हैं। ये हमारे साथी हुए ना। यानी हमारे जहनों से कि भाई ये नहीं सुनते, नहीं मानते, मुखालिफ है, ये जहनों से निकाल लो। देखो माशाल्लाह इज्तिमा में 25 आ रहे, सुनने वाले 200-500 होंगे, ये सब हमारे साथी है। आप उनकी तरतीब बनाओ। पहले आप डांगरदरा वाला तय कर लो कि इस बस्ती में काम को शुरू कर। देखो कारगुजारी बहुत नरम है और ऐसा ही मौका होता है कि आदमी थोड़ी मेहनत कर ले तो बस्ती खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर धांगध्रा में कमजोर है तो उसके अतराफ के साथी जरा देख लो, लोग अपनी दुनिया के लिए कितने दूर जाते हैं। रोजाना अहमदाबाद आपके यहाँ से कितने लोग जाते हैं? तो हमारी ये उसका मशवरा करो और ऐसी नरम बस्तियों को पहले काबू में लाने की कोशिश कर लो ताकि आपके गांव खुलते चले जाएंगे। इज्तिमा की मेहनत होती है, साथी जमा होते हैं, 100 साथी जमा हो जाते हैं। 100 साथी। लो माशाल्लाह देखो, तो ये सब अपने ही साथी है ना। अरे बोलो। दावत के साथ जोड़ करते हैं ना, हाँ तो 100 साथी जमा हो जाते हैं। और तो हम 100 तक पहुंचे इसलिए 100 जमा हुए। हाँ। अगर आप 200 तक पहुंचते तो कितने जमा होते? 200। 500 तक पहुंचते तो 500 जमा हो जाते। हमारी मेहनत थोड़ी और बढ़ा दे। ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी कारगुजारी हो रही है। चलो और वहाँ से दूसरा गांव था थरा, वहाँ हम गए, वहाँ 8 मकान है। वहाँ माशाल्लाह मुलाकातें वो कहाँ ठहरे? वहाँ बहुत बड़ा गांव था मौलाना, कहें वो मुसलमान जहाँ बिल्कुल सेंटर में थे। हम वहाँ गए पहले चलकर, हमने देखा लेकिन वो उनकी जो गली थी वो छोटी थी, तो टेंट डालने ऐसा था नहीं। तो वो एक भाई थे अब्दुल रहमान भाई मुल्तानी करके थे, और कि हमारे घर में ठहर जाओ, और उनके मस्तूरा भी कोई थी नहीं, वो बाहर गाँव गए थे। तो हमने उसको मुनासिब समझा उनके एतबार से, तो कहते हैं यहाँ माहौल ऐसा है तो बाहर आप ठहरोगे गांव के बाहर, तब टेंट डालना तो हिंदू सब ऐसा, तो उसकी वजह से हम उसके घर में ठहरे। उनके घर में ठहर कर नमाज भी वहाँ पढ़ी, और दूसरे भाई का घर था वहाँ ले गए, असर की नमाज वहाँ हमने पढ़ी। उसके बाद असर की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन हमने वो साथी को कहा कि हम कुरान की हल्कियाँ लगा लें। जैसे नमाज हमारी हो गई तो सब साथी हमारी जमात के साथी थे, वहाँ के वो 8 साथी थे, वो सबको अलग अलग लेकर हम बैठ गए। फिर ये हल्के 8 मकान के साथी उस घर में जुड़ गए थे। जी वो ये जो 3 मकान है उस तीनों भाई के अलग अलग है, सब एक ही मकान पर जुड़ गए थे सब। नहीं गांव के 8 मकान थे ना? 8 मकान में जो 3 मकान के 3 मकान वाले आ गए, थे, बाकी के 5 मकान वाले आए नहीं उनके घर पर हम गए थे, वो नहीं आए थे वहाँ। अच्छा एक बात याद रखने का, अगर किसी के देहातों में किसी के मकान में हम ठहरते हैं ना, तो आम तौर पर देहातों में आपस की ना इत्तेफाकी ज्यादा होती। अगर आप इनके मकान पे ठहरोगे तो वो लोग नहीं आएंगे, उनके मकान में ठहरोगे तो ये लोग नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे देहातों में कोई कॉमन जगह हो जहाँ सबका जोड़ना आसान हो, ऐसी जगह ठहरना चाहिए। अब अगर गली छोटी थी तो कोई बड़ी गली देख लेते आप करीब के अंदर। माशाल्लाह टेंट भी आपके पास तो था। जी वो जो 3 मकान थे वहाँ गली थी, और दूसरे जो हजाम थे वो बहुत वहाँ से शायद 1.5 किलोमीटर दूर रहते थे। इस कोने के अंदर
और दूसरे एक इस कोने के अंदर, यानी सब अलग अलग थे। गांव बहुत बड़ा था लेकिन मुसलमान के 8 ही मकान थे, तो ऐसा सब साथ में जुड़ नहीं सकते थे। मैं आपको पूछूं, अगर आप 1.5 किलोमीटर दूर भी ठहर जाते और रोजाना आते, 2 सुबह और शाम, तो 3 किलोमीटर चल के आ जाते, क्या फर्क पड़ता भाई? जी, तो आ गया। हाँ, याद रखने का ये, यानी बजाय किसी के मकान में ठहरने के, अगर कोई कॉमन जगह हो जहाँ सबका जुड़ना आसान हो, आप लोगों को नमाज की दावत दे, लोगों को हमारे बयानात पे बिठावे, आप गश्तों में उनको शरीक करें, ये बहुत आसान है। किसी के मकान के अंदर मस्तूरात होवे, थोड़ा हमको भी हिजाब होवे, थोड़ा उन लोगों को आना मुश्किल हो, तो बेहतर ये है कि कॉमन जगह के अंदर हमारी जमात कायम करें। और माशाल्लाह आपके पास तो टेंट भी था। चलो माशाल्लाह। तो भाई तीनों भाइयों की मुलाकात हुई जी वो आपके साथ नमाज वगैरह में शरीक हुए? जी, 7 आदमी ने हमारे साथ में नमाज माशाल्लाह माशाल्लाह। तालीम में बैठे, जी, तालीम में भी शरीक होती है। उनको इज्तिमा की दावत दी, जी, इस्तेमाल की भी दावत दी उनको। आए? जी, वो आएंगे फिक्र करोगे? इंशाल्लाह। कौन करेगा? हम ही करें, कब? फोन करेंगे। फोन करने से नहीं होगा, जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर यहाँ से? हमारी जमात के साथी कल परसों तशकील करने के लिए 50 किलोमीटर दूर गए थे। अगर आसान हो तो देख लो, बेहतर तो यही है कि आप उनको लाकर और कोई तरतीब ऐसी बनाओ कि जिससे वो हमारी इज्तिमा में शरीक हो जाए। ये वो गुलिस्ता भी आए थे, वो इस्तेमाल गांव के रिश्तेदार ही है। आएंगे इंशाल्लाह, तो फोन करके याद दहानी करा जी देना। जी, चलो, और वो साथी का कलमा टोटली कितनी बस्तियों में आपने काम किया? 16 बस्ती में हम ठहरे टोटल। माशाल्लाह। एक बस्ती में 2 दिन ठहरे, एक किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन ठहरे। तो टोटली कितने दिन की जमात थी आपकी? 40 दिन की जमा। तो 16 बस्ती में कितनी जगह आपने 2 दिन कायम किया? यानी कुछ वक्त हमारा इनके साथ में लगा था, जो पहली जमात जो थी ना हफ्ते पहले, तो साथ में थे 1 हफ्ते तक। उसके बाद हमको अलग किया। तो चलो 8 दिन इनके साथ ठहरे, और 16 बस्ती में से 2 दिन कितनी बस्ती में लगाए? 2 दिन कम ज़्यादा तो 7-8 बस्ती में, 8 बस्ती में होगा। चलो 8 + 16 वो, और 8 ये 24। बाकी के कितनी बस्ती में 1 दिन लगाया? बाकी धांगध्रा जो है, धांगध्रा जो हमारे जौन में नहीं आता, लेकिन वो बारिश थी, तो बारिश में होता है टेंट हमारा। जो सरा गांव में हम पहुंचे थे लास्ट में, तो वहाँ हम बाहर ठहरे हुए थे, तो बारिश बहुत हो गई, तो बारिश के साथ में आंधी भी आई, तो पूरी रात हम वहीं रहे थे। वो पर्दे भी आए तो सामान भी हमारा भीग गया और टेंट भी भीग गया, और फिर वो वहाँ तो से धांगध्रा मस्जिद में कायम किया? नहीं, धांगध्रा मस्जिद में कयाम नहीं किया। तो धांगध्रा के अंदर भी एतराफ़ में जैसे वो सोनी चांदी की दिया हो बस्ती है उनकी, जहाँ कयाम की इजाज़त नहीं है मस्जिद के अंदर, तो एक साथी के घर पर वहाँ अच्छा, कितने लोगों को आपने कलमा सिखलाया इस सफर में? जी 34 लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। इन 34 को कलमा पढ़ाया कि सिखलाया? सिखाया, पढ़ाया। यानी 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा रटाने का जिसको कहते हैं ना, ऐसा किया? नहीं नहीं, उनको आता ही नहीं था, तो उनको प्रसादी बैठ के उसके साथ में बैठते थे, बाद तालीम में आते थे, बाद को वहाँ मुलाकात के दरमियान सीखा। याद करा दिया कि नहीं? जी इंशाल्लाह। नहीं, यानी याद हो गए ना सब? जी जी, याद। बस, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। फिर वहाँ से हम दूसरा गाँव जेसड़ा था, जेसड़ा गए, वहाँ 12 कितनी जगह नमाज अजान जिंदा हुई आपकी बरकत से? यानी वो बस्ती है जो बोला, सब जगह नमाज तो यही है, क्योंकि वो आमतौर से हमें तबलीग वालों को इजाज़त नहीं, दूसरे गाँव बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, लेकिन नमाज तो वहाँ होती ही है। बहुत बड़े गाँव है वो सब, जिसमें खाकरेची है, टिकर है, हलवत के अंदर भी 1000 मकानात हमारे हैं, वहाँ भी हमारा माशाल्लाह गाँव के अंदर मस्जिद में कयाम होता है? मस्जिद में नहीं, इजाज़त नहीं है मस्जिद के अंदर कयाम, वहाँ गाँव में रहने की इजाज़त नहीं है, चुप चुप कर रहना पड़ता है। अच्छा, और ऐसी बस्तियाँ जहाँ मस्जिद मदरसा ना हो, वहाँ कुछ कयाम अजान नमाज जिंदा हुई? नहीं, अजान नमाज तो जिंदा नहीं हुई, तो करनी थी ऐसी जगह। तो मेहनत की हमने 6 जगह ऐसे। अच्छा, मस्तूरात का कुछ प्रोग्राम किया? जी, मस्तूरात का प्रोग्राम हुआ। कितनी जगह? वो हलवत के अंदर हुआ, और बाकी तो जो देहात थे वहाँ तो हमें रहने की इजाज़त ही नहीं थी, मुलाकात हम छुप छुप कर करते थे, तो वहाँ तो कोई मस्तूरात का वो जा ही नहीं सकते थे उनके पास में। पहली मुर्तबा जमात की? जी, पहली मतलब हमारा जमात है, आज तक जमात वहाँ कयाम ही नहीं हुआ।
अच्छा, ऐसे लोग जो पहली मर्तबा आपकी बात सुनी हो, ऐसे कुछ सफर में मिले आपको? पहली मरतबा ऐसे आगे सही रहो, एक गाँव के सौलाना था वहाँ वही दो घर थे और वो बस्ती वालों को पता नहीं है मुसलमान रहते। अच्छा, माशाल्लाह। और पहली मर्तबा मुलाकात हुई? जी पहली मरतबा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। पहली मर्तबा इनके कान में अल्लाह और उसके रसूल की बात पड़ी? जी पहली मरतबा। माशाल्लाह। और कितना पैदल चले आप लोग? हम 231 किलोमीटर चले। 231? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा कितने चले? ज़्यादा 23 किलोमीटर। सब साथी चलते थे? जी सब सारी थे। सामान कैसे लेके चलते थे? सामान गाड़ी में जाता था, माशाल्लाह। साथ ही सब पैदल चलते। सब साथी खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ? हमें फ़ायदा हुआ कि हमने एक साल छोड़कर देहात के अंदर मेहनत करनी चाहिए। 3 दिन माशाल्लाह साथियों को का टिकट दिलाई, हम तो लगाए थे 3 दिन छोड़ के अंदर ही, दूसरा अगस्त छोड़ के अंदर बंजा बस्ती के अंदर करे उसकी फिक्र दिलाई। आपका इससे पहले कितने चिल्ले लगे? आज तक कितने चिल्ले लगे? चिल्ले में और सभी 2009 से अभी तक लगे 17 साल। यानी 15-20 चिल्ले लग गए ना। वो चिल्ले और ये चिल्ले जोन का, इसमें क्या फर्क आपको महसूस हुआ? वो सब एक और एक है ये चिल्ला। नहीं, 4 बोलो, महीने सबके सामने बतलाओ सबको। नहीं, जितने 4 महीने लगे, जितने चिल्ले लगे सब एक साइड में रखो, एक साइड में ये जोन का चिल्ला। समझे भाई? यानी वो चिल्ले 4 महीने एक साइड पे रखो और जोन का चिल्ला एक साइड पे रखो, तो कौन बढ़ जावे? जोन का चिल्ला जोन का चिल्ला बढ़ जावे। कैसे बढ़ जावे? ज़्यादा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है और अपनी तरबियत होती है, अपनी तरबियत होती है और उम्मत का साथ पहुँचना होता है। कि ऐसे लोग हमारे साथ में वो साल वाले उलमा किराम जोड़े थे, वो कर्नाटक के थे बेचारे, और उनको के गुजरात में आए थे और उनको हमारे साथ में जोड़ दिया। तो वो कह रहे थे मौलवी साहब यहाँ तो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं, सब हमको निकालते चुप चुप कर रहते, तो यहाँ काम करने की ज़रूरत क्या है? तो हमारे बहुत बड़े बड़े देहात है जहाँ मुसलमान बहुत है, तो वहाँ मुला जमात यहाँ डालने की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा मौलाना हमारे गाँव के अंदर भी यही हाल था, लेकिन वो जमात वाले बेचारे 30 साल पहले आए तो आज हम यहाँ पर है। तो इंशाल्लाह 30 साल के बाद यहाँ भी ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ बात सुनेंगे। आज जमात ने आज तक कभी जमात यहाँ ठहरी ही नहीं, जमात को इजाज़त ही नहीं। आज हमने 24 घंटे क़याम किया, 48 घंटे क़याम किया, तो आइंदा इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर भी क़याम करेंगे, तो काम भी इंशाल्लाह फैलेगा। तो वो मुतासिर होके गए ना? जी बहुत मुतासिर हुए। हमारे जान में पड़ा हुआ जिम्मेदार आदमी है यहाँ का। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, सबने काम तो सभी जमात ने किया, लेकिन ये जरा अच्छी तरीके से पेश करें। यानी हमारा यहाँ का देखो उलमा का जहन बना, अवाम का जहन बना, और कितनी अच्छी बात समझाई माशाल्लाह। 16 देहात में मौलाना हम गए, और टेंट कितने देहातों में लगा है? सब जगह टेंट में रहे मौलाना। और देहातों में भी खैरियत रही? हर जगह वो गावड़िया के लिए भी आते थे मौलाना। वो रावड़िया मतलब एक गांव हमारा है, वहाँ वो लाला भाई की जमात जब चली तो वो 5 मिनट भी उनको ठहरने नहीं दिया था। वो आए थे मौलाना, निकाल गए, हम भी वहीं गए थे उस गाँव के अंदर, और वहाँ हम ठहर गए कब्रिस्तान में। और वहाँ जैसे ठहरे तो पहले वो तब बाइक लेके आ गया भाई, बोले किसने कहा, किसने इजाज़त आपको दी, आप कहाँ से आए हो? हमने तो कहा हम हर जगह जाते हैं, मुसलमान जहाँ होते, मस्जिद नहीं होती, मदरसा नहीं होती, उनके साथ में रहते, ईमान की अमल की फ़िक्र करते। बोले नहीं हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं करनी, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। हमने कहा भाई अभी तुम आए, अभी हमारा खाना पक रहा है, खाना हो जाए फिर देखते हैं। फिर वो निकल जाना, कोई बात नहीं, चले गए। 2 औरतें आई, बोले कहाँ से आए हो? तो हमने कहा हम तो विरंगाम से आए और बजाना से आए। तो बजाना की वो रिश्तेदार थी, औरत जो थी वो फकीर थी वहाँ की, सबसे पहले वही हैंडल करते पूरे गांव को। तो फिर वो रिश्तेदारी निकली, तो बेटा અત્યારે તમે રાંધીને ખાઈને જતા રહેજો, આ લોકો હું સારા છે નહીં કે આ લોકો મારશે ને તમે નીકળી જાઓ ખાઈ। तो कोई नहीं, मासी में खाई निकली जसू, पहले खाना पकाया, तो उसके बाद तो हमें नमाज हुई। तो दूसरा आदमी आया, उसको भी हमने हमारे साथ में खाने में शिरकत करा, और फिर उसको हमारे साथ में नमाज भी पढ़ी। उसके बाद हमने हर घर की मुलाकात की, पूरे गाँव के अंदर निकल गए हम। तो फिर वो रात को पूरा 20-25 आदमी आया लकड़ियाँ लेकर, हम तो गांव के अंदर थे मुलाकात में। तो वहाँ से वो हम तो पता चला तो वहाँ आए,
तो वहाँ आए तो वहाँ सब वो अजीब सीन था, सब वो मारने के लिए आए थे, बोले अभी निकल ही जाओ तुम सुबह के अभी तक गए नहीं, रात की ईशा का वक्त हो गया। तो हमने कहा अभी हम चले जाते खाने, अभी तो निकल ही जाओ, अभी तुम्हारा खाना भी हम फेंक देंगे और तुमको अभी निकलना ही है। हमने कहा कोई बात नहीं, खाना भी नहीं खाना। तो फिर वो तैयार हुए, बोले कि 5 आदमी ने कहा कोई बात नहीं, खाना खा लो। खाना खाने दिया, लेकिन हमें नमाज बुलाना नहीं पढ़ने दी उन्होंने, ईशा की नमाज। उन्होंने कहा रात को हम कहाँ जाएंगे, बोले आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ, बाकी यहाँ नहीं ठहरना। फिर हम वहाँ से दूर जीबी की ऑफिस थी, वो वहाँ पर बाहर हम ठहरे, ईशा की नमाज हमने वहाँ पढ़ी। ऐसे बहुत सारे देहात के अंदर मौलाना हुआ। अल्लाह जज़ाए खैर, बहुत बड़ी बात है इस ज़माने में इस तरह से करना। वही मौलाना वापिस मिले थे इंडिया में। हाँ, वही मौलाना जो है ना, जो ये रावलिया वदर में जो मौलाना रात को आए थे, 1.5 घंटा तक हमारे साथ में बात की, सब 20-25 पूरा टोला, बहुत वो तो बोले हम तुम कहीं भी जाओगे हम तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे, आगे तुम कहीं जाना ही नहीं इस गाँव को छोड़कर। तो हमारी जिम्मेदारी में रूट भी बदल दिया, ऐसा माहौल हो गया। फिर आखिर में हमने वो देहात को लिया, वो लिया में दूसरा कुंतलपुर लिया और ये रावलिया वदर। एक मौलाना धोराजे का मौलाना है और यहाँ से 3 गाँव पे हैंडल करता है। मस्जिद एक भी गांव के अंदर नहीं मौलाना, वो खाली जुम्मा की नमाज यहाँ पढ़ाता है कब्रिस्तान के अंदर, और सब दीवार पे वहाँ जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए आता है। अब वो हम वहाँ गए, कुंतलपुर के अंदर थे, वहाँ वो क्या मोटा पीर की दरगाह थी, तो दरगाह के अंदर हम ठहर गए थे और वहाँ से रहकर माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते थे, गाँव के अंदर मुलाकात भी करते थे। तो हम वहाँ से एक गाँव था पॉन्ट, वहाँ बंजर बस्ती थी, तो वहाँ हमारे साथ 2 साथी को पैदल मुलाकात के लिए हमने भेजा कि तुम पैदल मुलाकात करने के लिए वहाँ जाओ। अब रात का टाइम हो गया, तो हमने और दूसरे साथी गांव के अंदर मुलाकात में गए। तो गांव के अंदर दूसरी दरगाह थी छोटी सी, वो उस दरगाह के अंदर वो पढ़ाता था और साथी हमारे सब सहमे हुए थे, उसको लेकर डरे हुए थे। तो साथी बोले दिवाली का वेकेशन है, अब मौलाना चला गया तो अच्छा है, अब यहाँ तो होगा नहीं। बच्चे आए, बच्चों को पूछा कि मौलाना चले गए, पढ़ाने नहीं आते। तो हम तो मुलाकात करके जा रहे थे उसी के अंदर, तो सारे बोले हमें पता होता पहले से तो हम तो इससे भी खुलकर काम कर सकते थे। ऐसे हम बात कर रहे थे और वैसे वो दरगाह आई तो बाहर चप्पल थे, मैंने सोचा हमारे साथ भी गए नहीं, यहीं बैठे हुए। तो मैं तो अंदर गया तो वो अंदर वही मौलाना बैठा, वो देख रहा था, उसने मुझे देख लिया, हम वापस भी नहीं जा सकते। मैंने उसको चलो अंदर चल, तो हम अंदर गए, फौरन मैंने मुसाफा किया, सलाम की, उसने मुसाफा नहीं किया। तो मुझे कहा सुन्नी हो, हमने कहा प्योर सुन्नी है, तो मैं तबलीग वालों से हाथ नहीं मिला था, ऐसा यहाँ प्योर सुन्नी अहले वल जमात में से। तो मैंने बैठ गए, उसके एक बाजू मैं बैठा, एक बाजू दूसरा साथी, दोनों बीच में उसको बिठाया। अब उसके बाद पानी पड़ने बोला, पानी पी सकता मौला, पानी पी लो, पानी पिया। उसके बाद पूरी बात की उसको, हालांकि मौला वो 1.5 घंटा, हालांकि वो हमें देख पहचानने से इनकार कर रहा था। अब वो साथी बोले मौला मैं वही मौलाना है, यहाँ क्यों ऐसा नहीं करता, वहाँ तो उसका सब बैक पावर था ना उसका, सबका बस्ती वाले सब थे, दूसरी बस्ती है, यहाँ कुछ कर नहीं सकता। तो आप 15-20 में उसके पास में बैठे, पूरी बात हुई और वहाँ से माशाल्लाह ऐसे तो बहुत सारे मौलाना देहात है जहाँ बहुत सारा हुआ। तो खाकरे जी गांव है, वहाँ तो माशाल्लाह पहले हमें बाहर हम ठहर रहे थे, तो गांव के बूढ़े आदमी थे, वो आए, बोले यहाँ क्यों ठहरते हो, हमारी मस्जिद भी है और बहुत बड़ी दरगाह है, दरगाह के अंदर हमारे माशाल्लाह किचन सब बना हुआ, तुम यहाँ पकाओगे, चलो वहाँ। तो वो साथी वहाँ हम गए, तो वहाँ गए तो जोहर की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मौलाना की मुलाकात की, मौलाना को पूछा कहाँ से हो, बोले ये बिहार से है। वो आप क्यों निकले हो, हमने कहा, फिर सब बात बताई कि भाई मुसलमान के ऐसे ऐसे हालात है, आप तो माशाल्लाह यहाँ तो 60-70 मकान है, लेकिन दूसरे में 12 मकान है, 8 मकान है, वहाँ मुसलमान को ईमान कलमा भी नहीं आता, खड़े रहते नहीं आते। हमने कहा वो गाँव के अंदर हम थे सौलाना के अंदर, और मुसलमान को उसको वुजू नहीं आता था, वुजू हमने उसको सिखाया, उसको नमाज का, उसको नमाज पढ़ने नहीं आता, हमें असर की नमाज थी, हमें कसर पढ़नी थी। हमने उसको कहा कि आपको 2 नमाज रकात खड़े हो जाना है, जो खड़ा नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं ऐसे मुसलमान है, इसमें मेहनत करते थे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो हमारे बहुत बड़ी दरगाह थी, दरगाह के अंदर थे, तो वो साथी आए दावत देने के लिए, भाई यहाँ वो नियाज का प्रोग्राम है, आप खाओगे। हमने कहा बेशक आपकी नियाज तो खाएंगे, हम कल भी खाएंगे। हमने साथ कहा बाबू पकाना इनका खाना है। तो फिर वो पूरे नौजवान आए, अब उनको पता चला कि जमात वाले, तो जब हलवद के अंदर हम थे, हलवद के अंदर 4 मस्जिदें हमारी, तो वहाँ 4 दिन तो हमने काम किया, घर के अंदर ठहरे हुए थे छुप कर, और 2-2 जोड़ी बनाई थी चारों मस्जिद के अंदर। हलवद के अंदर 95 मुलाकातें हुई माशाल्लाह, और वहाँ 2-2 साथी को भेजते थे मस्जिद के अंदर। तो एक जुम्मा मस्जिद थी, वहाँ मुझे देख लिया, तो मगरिब की नमाज पढ़ी पहले दिन ईसा की, दूसरे दिन गया तो फिर वो 10-15 बच्चों को रात को जमा करके बिठाया एक बाजू, और मुझे पता आज बुलाएंगे। तो 2-3 साथी हम थे, 2 साथी मेरे बाहर निकले, मैं अकेला था।
तो मुझे बुलाया मौलाना ने, बिठाया, बोले क्यों आए हो, तबलीग करने के लिए आए हो। हमने कहा नहीं मौलाना, तबलीग तो करके साहबा चले गए, हमारा काम तबलीग का काम नहीं, हम तो सीखने के लिए आए। बोले ऐसा, बोले हाँ, बोले आप तो देवबंदी जैसे लगे। तो मैंने कहा नहीं प्योर मैंने कहा सुन्नी हूँ। बोले दाढ़ी है ना मोदी की नहीं है, अल्लाह के नबी की है। तो ऐसी पूरी बात उसको कही। उसने कहा कि एक काम करो कि तुम्हें सिखाना तो जंगरीवास में चले जाओ। हलवद का एक इलाका है जंगरीवास करके, वो बहुत बाहोश लोग हैं, उसकी वजह से हलवद टिका हुआ है। तो बोले वहाँ जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, वहाँ जाएंगे, आप चलो, मैं रेबरी करो, बताओ। तो बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप चले जाना। तो अल्लाह का करना, सुबह में तालीम में मशवरा हमारा हुआ, तो हमने यही थे कि आज तो जंगरीवास में जाने का है। तो हमने एक साथी को लेकर वो तालीम के बाद गए, 12:30 बजे थे, 12 गए। तो अल्लाह का करो मौलाना सामने से आ रहा था, तो उसको मुसाफा किया और कहा कि जंगरीवास कहाँ पर है। तो बोले जंगरीवास तो के आगे चले जाओ, वहाँ से वहाँ जंगरीवास है। तो हम तो वहाँ गए जंगरीवास के अंदर, माशाल्लाह मुलाकातें जंगरीवास के अंदर भी हुई। और वो बाहर बैठे बैठे बात करते तो उनका बापू आया। अब बापू जैसे बापू आया, वो बहुत छोटी उम्र थी बापू की, लेकिन अकीदत इतनी लोगों की थी कि छोटे छोटे बच्चे आकर उसके हाथ चूमते थे और औरतें तक उसको सलाम करते थे, फॉर व्हीलिंग वो भी उसको सलाम, ऐसे अकीदत। इतना छोटे उम्र का 30-35 साल का आदमी होगा उनका पीर साहब। तो मुझे बोला कहाँ से आप आए हो। हमने कहा तो विरंगाम से आए। क्यों आए हो, कि पूरी बात उसको गई। मैंने कहा आप कौन हो। मैं कहा मैं तो संधि हूँ। तो बोले वो उसको बहुत ऐसा संदेश है, मेरे बहुत सारे मूर्ति के संधि है। मैंने कहा नहीं हम संधि है। नहीं आप संधि नहीं लगते हो। मैंने कहा हम संधि है बाबा, आपके घर के अंदर धोखे होते, हमारे घर के अंदर बंदूकें होती, वही संधि है। लेकिन आपके जैसे कि हाथ पड़ गए तो हम ऐसे बन गए। और आप आ जाओगे देखो कितना सारा मजमा है, आपके हाथ चूम रहा है और आप बाजार पूरी भरी हुई है। अगर आप मस्जिद में आ गए सब मस्जिद में आ जाएंगे। आप इंशाल्लाह मस्जिद में आ जाओ तो पूरा मस्जिद आबाद हो जाएगी। अब इतनी बड़ी जुम्मा मस्जिद आप देखो कितने नमाजी है। नहीं आप काम बहुत अच्छा करते हो, ऐसा माशाल्लाह। वहाँ तो वहाँ वायरल हो गए थे हम। यहाँ जो खाकरे जी में आए तो वो उनका प्रमुख था घांची का, वो झालावाड़ी जो घांची है पूरा, उनके 53 गाँव है वहाँ। और वो पूरा उनको पता चल गया तो आपको धांगरा से निकाला, आपको टिकर से निकाला, आपको रावड़िया वदर से निकाला, वही हो। हमने कहा हम नहीं आए थे, चाचा लेकर हमें आए थे, हम तो बाहर ठहरे हुए थे। मेरे चाचा को पूछो, तो चाचा उसके सामने खड़े हो गए। अच्छी तो बात है, अच्छी तो बातें कर रहे हैं, नमाज का कह रहे हैं, कुरान का कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आप उनकी मुखालफत करते हो। तो वैसे हमने कहा आप लड़ो मत, हम तो सुबह में चले जाएंगे, आपको गांव के अंदर रहना है, साथ में मिलकर रहो, हम तो चले जाते हैं। ऐसा करके हम बाहर निकल गए और फिर हमने बाहर बिछा दिया, मस्जिद के बाहर जो रोड हाईवे था, हाईवे के ऊपर हमने बिछा दिया। बिछाने का मुझे पता था वो वापस नहीं आने वाले। फिर साथी को लेकर बोले वो आवे तब तक सब मुलाकात हो जाए। तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ हम चले गए मुलाकात के लिए। सबको घर ढूंढ कर एक साथी को साथ में लिया और घर पर बैठ के बात करते थे। तो वैसे वहाँ दूर मुलाकात करते थे, बाइक वाला आया और बाइक वाला आकर हमको पीछे बिठाया और पीछे बैठे। क्यों क्या काम है, बोले आपके साथी आपको बुला रहे हैं। अब मैं वापस वहाँ आया तो वहाँ तो देखा तो सब हमारे साथी तैयार है जाने के लिए। क्या हुआ, बोले वो अभी आया था, हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था। मैंने बोला आप मेरा तो इंतजार करते। बोले नहीं वो तो बहुत गुस्से में था अमीर साहब, वो मार ही देता था। ऐसा कोई बात, बिछाओ फिर से बिछाया हमने वहाँ, फिर से तालीम शुरू की। तो फिर वो दोबारा आया, जो वहाँ का वो प्रमुख था वो, और दूसरे साथी भी आए। फिर वो सरपंच था, सरपंच से भी बात की कि हम यहाँ से पैदल चल के आए। तो बोले काम करो कि मंदिर में ठहर जाओ। हमने कहा मुसलमान है, हिंदू नहीं है। तो ऐसा मुसलमान मैं क्या आता हूँ और आपका कुछ इंतजाम करता हूँ। बहरहाल उससे भी बात हुई, उसने हमें ठहरने नहीं दिया। उसने कहा गांव में तो मत ठहरना, लेकिन हमारे गांव के जो सीमाड़ा है वहाँ भी नहीं ठहरना, दूसरे गांव के अंदर नहीं ठहरना। हमने कहा दूसरे तू तेरे गांव का धनी है, दूसरे गांव का तू क्यों कहता, दूसरे गांव में नहीं ठहरना, हम तेरे गांव में नहीं ठहरेंगे। फिर वो फिर 3 किलोमीटर दूसरा पेट्रोल पंप था, वहाँ हम गए और वहाँ जाकर फिर हमने असर की नमाज पढ़ी। वैसे वहाँ से फिर एक जूना देवड़िया गाँव है और जूना देवड़िया गाँव में गए, वहाँ छोटी सी दरगाह थी, उस पर जाके ठहर गए। और वहाँ ठहरने के बाद वहाँ 60 मुसलमान के मकान है और सब अलग अलग रहते हैं और मस्जिद भी है मौलाना। तो वो मस्जिद है तो मियाना है, तो मियाना की मस्जिद है। तो वहाँ हम गए तो उसके दुकान वाला था, तो उसको हमने कहा कि हमें नमाज पढ़नी है। तो बोले मस्जिद तो है अपनी। तो हमने कहा मस्जिद को लॉक लगा हुआ है। तो बोले मैं क्यों मस्जिद को लॉक लगाया तुमने। तो बोले हमारे खाली जुम्मे की नमाज होती है और अभी के दिवाली की सीजन है तो वो सब वो गांठिया उसके अंदर मैंने भरे हैं मस्जिद के अंदर। वो पूरे जो आते हैं कि वो फेरिए नहीं आएंगे, वो पूरे फेरिए नहीं आएंगे ना, तो हम मैंने सब भर दिया उससे, इसलिए मैंने मस्जिद को लॉक लगा दिया।
यानी मौलाना वो हफ्ते में एक मतलब मौलाना वहाँ आते हैं, वो मालिया से आते हैं मौलाना जुम्मा पढ़ाने के लिए, खाली जुम्मा पढ़ाता है। वो एक कांची रात को बैठने के लिए आया हुआ दरगाह के ऊपर हमारे साथ, और पूरी बात उसने की कि मौलाना आते हैं, ईद में इतने पैसे ले जाते हैं, बकरीद में इतने पैसे ले जाते हैं, और जुम्मा के दिन खाली आता है, सबकी जो आवक आती है सब लेके वो चला जाता है। और हमें 5 साल से हमें कुछ नहीं सिखा था। यानी मौलाना उनके अंदर तलब बहुत है, बस हमारी ओर से कमजोरी, हम डर रहे हैं कि नहीं काम नहीं हो सकता। अगर हम चले जाए और वहाँ काम कर बहुत अच्छा काम हो सकता है, और सारे देहात वहाँ के, वो काठियावाड़ के सारे देहात खुल सकते हैं। तो थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। भाई आज अब तीसरी जमात आ जाओ। 231 किलोमीटर। देखो माशाल्लाह इन्होंने कितनी हिम्मत से काम किया। और लोग फुफाड़े मारते, कोई मारता नहीं है, लोग डराते हैं, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं। अगर हमारा ये मजमा मजबूती के साथ काम कर ले तो 1 साल नहीं बल्कि 6 महीने में तमाम देहात खुल सकते हैं। तो वे सब करेंगे इंशाल्लाह। देखो अभी कारगुजारी के बाद आपकी 3 दिन की जमातें ऐसे ही देहातों अपना टेंट लेकर जावे और हिम्मत से काम करे, इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम अल्लाह पाक आपके हाथों से लेगा। ये ताइफ का जो वाकया बयान करते, किसके बयान करते हो? मौलाना पूछते ताइफ का जो वाकया आपने बयान करते वो किसके लिए करते? यानी हमारे नबी को निकाला गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए, खून निकला, लेकिन अल्लाह पाक ने आज पूरी बस्ती को कैसे आबाद कर दिया। ये ताइफ को खुदा ने हिदायत दी है हुजूर के मार खाने पर। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी कारगुजारी हो रही है, और बहुत अच्छी ये हमारी जमात ने हमारी हिम्मत अफजाई वाली कारगुजारी सुनाई। हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है माशाअल्लाह। अब तुम सबको जोन में जाना है, मार खाने जाना है, मारता नहीं है। फाड़े मारने वाले कुछ करते नहीं है, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता भी नहीं है। हम आगे बात है, और एक मौलवी कुछ कहे तो उससे मुतासिर हो जाने का। चलो विरम का मक्के की जमात थी, बजाना हल्के के अंदर चली थी। उसमें टोटल हमारे 8 साथी थे। उसमें 4 माह लगाए हुए 7 साथी थे, और 40 दिन वाले 4 माह वाले 7 साथी। जमात का कुल साथी कितने थे? 8 साथी। उसमें 4 माह लगाए हुए 7 साथी थे, और चिल्ले वाले 1 साथी थे। टोटल हमको 28 देहात दिए गए थे मुलाकात के लिए। ये 28 देहात किसने दिए थे? मशवरे के अंदर से लिखे हुए थे। गुज़िश्ता साल जो हाँ। उसने दिए। हाँ, उसमें और मुलाकात के 17 गांव थे, और हमने जो 18 जगह पर हमारा कयाम हुआ, वहाँ पर 4 जगह जो है हम तंबू के अंदर रहे थे। तो सबसे पहला जो हम गए थे कारेला के अंदर, तो वहाँ पर तो इबादत का गुज़िश्ता साल वाली जमात गई थी। हाँ, ये इस साल का वाली भी पहली राउंड की जमात वहाँ पर चली थी। इस साल भी गए थे। हाँ, माशाल्लाह ये पूरे सफ़र के अंदर ये देखने मिला कि भाई सारे जो देहात है, जितने भी गांव है, वहाँ पर साथियों की दिल नरम है। हाँ, सबसे पहला हम कारेला के अंदर गए मुलाकात के लिए, तो अक्सर साथियों की मुलाकात हुई। अब रहबर तो कोई आते नहीं थे, एक साथी थे जो असर के अंदर सिर्फ आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और उनके जरिए से मुलाकात करते थे। लेकिन कभी कभी वो भी काम की वजह से आते थे, नहीं आते थे, तो हम जहाँ पर इलाके थे बस्ती के अंदर, वहाँ पर चले जाते थे। वहाँ पर जो बच्चे होते थे, वहाँ पर मदरसा है, तो असर के अंदर मदरसे के अंदर आते थे, तो हम साथ के अंदर वो गोलियाँ बिस्किट वगैरह सब ले गए थे बच्चों को देने के लिए। तो जब मदरसे के अंदर जाते थे तो अक्सर बच्चों को गोलियाँ हम दे देते थे। तो और फिर मुलाकात के लिए जाते तो वो बच्चे वहीं पर होते थे, खेलते होते थे, तो उनके जरिए से, रहबर के जरिए से सारे घरों की मुलाकातें करते थे। तो बच्चे रहबरी करते थे। हाँ, बच्चे भी रहबरी करते थे, और अक्सर सब घरों के अंदर मुलाकातें करवाते थे वो। तो फिर वहाँ से अक्सर मुलाकातें हुई कारेला के अंदर। तो एक जगह पर जब मुलाकात कर रहे थे और उनको घर वालों को नमाज की फिक्र दिला रहे थे, अक्सर मुलाकातें का इंतजाम ये करते थे कि भाई घर के अंदर बैठकर मुलाकात हो। तो मुलाकात के ख़त्म के बाद में घर के अंदर से मुस्कुराहट की एक आवाज़ आई कि भाई यहाँ पर तरावी की कोई इतनी जल्दी शक्ल नहीं है। तो फिर हमने मस्जिद की फिक्र दिलाई। कारेला के अंदर 30 के करीब मकानात हैं,
मस्जिद की फिक्र दिलाई। तो वहाँ पर का साथियों का कहना है भाई हमारे यहाँ के गांव के साथियों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, इसलिए मस्जिद का कोई चीज़ है नहीं। तो भी हमने इनको फिक्र दिलाई कि भाई वहाँ के तुम साथी से मशवरा करो, जो मौलाना आते हैं उनके साथ में मशवरा करो। और फिर वहाँ से हम दूसरी जगह पर गए। टोटल हमारी जमात ने नहीं, इनको मस्जिद की फिक्र का हमारा जैसे मौलाना का, यानी हम पक्की मस्जिदों की फिक्र न करें, कोई ऐसी जगह तय करा कर वहीं जैसे 4 खम्भे गाड़ दिए, एक प्लास्टिक ऊपर ओढ़ा दिया, हमारी मस्जिद हो गई। अब उसमें ना इत्तेफाकी का कोई बात नहीं, बस हम दावत देवे, अजान शुरू करा देवे, नमाज शुरू हो जाती। आइंदा 3 दिन की जमात में ये अमल करना। और कारेला के अंदर एक साथी ने हमारे साथ असर से लेकर ईशा तक का वक्त भी लगाया और दो टाइम की नमाज भी पढ़ी। उसका फोन नंबर लाए, हाँ, उसका नाम वगैरह नाम भी है और उसको नोट कर लेना। आइंदा यही हमारा रहबरी करेगा इंशाल्लाह। और उस साथी को फ़ोन भी किया था अभी इज्तिमा से पहले भी अच्छा, कि भाई इज्तिमा में आओ, और आओ तो मुझे फ़ोन करना, हम साथ में मिलेंगे, चाय पानी पिएंगे, इस तरीके से उससे बात भी की थी। तो क्या कहा, आएंगे ना? इनका इंशाल्लाह आऊँगा मैं। आज फिर से फोन कर ले। कितना इंशाल्लाह। दूर है आपके यहाँ से? कारेला एरिया के पास है। फोन करके बुलवा लेना इंशाल्लाह। चलो। और फिर वहाँ से कारेला के अंदर ही जब मुलाकात की तो वहाँ से ये जो पहली जमात ने काम किया, उसके अलावा कोई नई बस्ती में आपने काम किया? हाँ, वो सुनाओ। बजाना के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर एक डफेर की बस्ती है, डफेर रहते हैं वहाँ पर। उनके यहाँ 10-11 उनके वो तंबू उन्होंने लगाए हुए रहने के लिए। तो फिर एक कौम है जी, कौम हाँ, खाना बदोश। तो वहाँ पर ये नया कयाम हुआ। तो वहाँ पर कयाम किया तो वहाँ पर 10-11 उनके थे। तो सबसे पहले तो जो उनका प्रमुख था, हमने वहाँ पर तंबू लगाया तो सब देख रहे थे भाई ये क्या कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से मुलाकात की तो सबसे पहले उनके प्रमुख की मुलाकात की और उनको बताया कि अब हम ईमान अमल की बात करने के लिए आए, ये सारी चीज़ें उनको समझाई। तो वो माशाल्लाह उन्होंने बात भी सुनी और कहा कि मैं टाइम होता है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो वहाँ पर ये हुआ तो उनके 10-11 जो थे तो सारे के सारे घरों की तो मुलाकात हो गई। और वहाँ पर उनके अक्सर 10 से 11 बच्चे टोटल हो गए ना, छोटे के। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे उनको पढ़ाने का क्या इंतज़ाम है, मदरसे का क्या इंतज़ाम है? तो कि भाई हमारे तो कोई मदरसे का इंतज़ाम वहाँ पर नहीं है पढ़ाने का भी, लेकिन अभी हमको बजाना में ही रहना है, हम इधर ही भी हम अपना कयाम करेंगे। तो वहाँ पहले साथियों को कलमे की फिक्र दिलाई। तो वहाँ पर एक नौजवान था जो हमारे साथ में आया था, तो उन्होंने उनका कलमा सुना कि भाई कलमा तो पढ़ के दिखाओ। तो उनको एक कलमा पढ़ाया, कलमे के अंदर उनकी भूल थी। और वहाँ पर भी सारे बच्चों की इस तरह से गोलियाँ थी तो सारे के सारे बच्चे जो थे वो तंबू के पास में आ गए। 10-11 बच्चे थे तकरीबन। तो उनको भी पूछा कि भाई तुमको कलमा आता है, मदरसे का क्या है? क्योंकि हमको किसी को कलमा नहीं आता। तो वहाँ पर हमारे साथ में साल वाले जो उलमा थे वो उनको बच्चों को लेकर के बैठे और उनको कलमा सिखाया, वहाँ कलमा पढ़ाया। फिर उनके जो प्रमुख थे दूसरे दिन हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर उन्होंने सुबह के अंदर। तो उनको फिक्र दिला कि भाई तुम कुछ ना कुछ तरीके से मदरसे का यहाँ पर इंतज़ाम करो। और यहाँ के बजाना के जो मुकामी साथी थे उनको भी कहा है कि वहाँ पर वो मदरसे के कुछ फिक्र करेंगे। थोड़ी इसकी और फिक्र करना, यानी अतराफ के उलमाए किराम को मुतवज्जे कर कर इन बच्चों की तालीम का निज़ाम शुरू हो जाए, ऐसा करना। चलो। और फिर कारेला से जब हम गए थे, इंद्रोड़ी के अंदर गए थे, तो वहाँ पर हमने 2 दिन कयाम किया था। और कौन सी नई बस्ती में काम किया, जैसे ये बस्ती में आपने काम किया? नहीं, दूसरी कोई ऐसी नई बस्ती नहीं थी जहाँ पर काम हुआ। जो पहले जमात चली थी जमातों की, उन्हीं बस्ती में काम हुआ है। लेकिन पहली जमात ने काम किया था तो उसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि भाई दूसरी बार जब जमात में जाना हुआ तो वो थोड़े साथी की मुलाकातों के अंदर फिक्र थोड़ी अच्छी थी। ये 18 बस्तियों में पूरे साल भर में आपकी 3 दिन की जमातें जाती? कारेला में जाती है, कारेला में जाती और धर्मट में जाती है। 2 जगह। अभी ध्यान में रख लेना, माशाल्लाह तमाम बस्तियाँ बहुत नरम है। आपके 3 दिन की जमात की बरकत से अब ये जब अभी बिठाएंगे तो इन बस्तियों में अपने जिम्मे ले लेना। अभी यहाँ कितने साथी लेकर आए? यहाँ पर अभी कोई साथी आए नहीं है। कल भी मैंने फिक्र की थी, फ़ोन भी किया था, तो वो कि हम कल आएंगे या परसों आएंगे। तो फिर अभी भी फिर से मैं फ़ोन करने वाला हूँ
जिनकी शादियों के सारों के नंबर लिए हुए हैं। अच्छा, उनका माकूल इंतजाम कराना और वो एक साथ आ जावे किसी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कोई ऐसी छकड़ा हो, इसमें तमाम साथी आ जावे, उसको अपने पास ठहराना। माशाल्लाह। कितना चले आप लोग? टोटल 62 किलोमीटर चलना होगा। 62 किलोमीटर चले, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो भाई दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, लेकिन आपके 4 जोन है, तो एक जोन में अगर 2 राउंड की जमात चलती तो आपकी 8 जमात चलनी चाहिए। हमारी 3 जमातें चली, जब इसमें इतना नफा, इतनी उम्मीद अफजा बातें बतलाई, अगर आपकी 8 जमातों में, जोन की जमातों में जमात चलती तो बोलो कितना बड़ा नफा होता। अब दोस्तों बुजुर्गों, हमें मुतासिर होना नहीं, जो पिछला हो गया हो गया। देखो आपका जिला माशाल्लाह ऐसा है, अगर ये हिम्मत कर ले, आपके यहाँ कल तकरीबन 550 आदमी 4 महीने वाले हैं ना, 550 आदमी 4 महीने वाले, और तकरीबन इतने ही आदमी चिल्ले वाले। 1100 का आपका एवरेज है कि चिल्ले 4 महीने वाले 1100 है। अच्छा, आपकी 3 दिन की जमातें कितनी निकलती है? 18-20 निकलती। देखो हमारी मेहनत की कितनी कमी है, ये हमारा कैपिटल है। ये 1100 आदमी जिनके चिल्ले 4 महीने लगे, अगर सिर्फ इनकी ही जमात बन जाती तो भी हमारी कितनी जमातें बन जावे? 110 बन जाए। अच्छा, आपके 4 महीने और चिल्ले में अमीर बनकर जावे ऐसे कितने आदमी थे? 45 थे, 48। तो अगर इनकी जोड़ी आप बनावे तो आपकी माशाल्लाह 48 जमातें बन सकती हैं। और हमारा अभी 18-20 जमातें जाती है, अगर आप इनकी जमात बनावे तो डबल बन जाए। और ये मजमा, ये हमारा बैठने वाला मजमा, इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके चिल्ले लगे या जिनके चिल्ले नहीं लगे, लेकिन माशाल्लाह वो भी 3 दिन की पाबंदी कर सकते। अगर हमारा ये मजमा भी, ये 100 का मजमा, अगर ये तय कर लेवे, हम अपने साथ एक जमात बनाएंगे 3 दिन की, और अतराफ की बस्तियों में जाकर मेहनत करेंगे, तो बोलो आपकी 100 जमातें बन सकती है कि नहीं? माशाल्लाह हर एक के साथ 10-12 आदमी, 10-12 आदमी पूरे महीने भर मेहनत के नतीजे पर मिल सकते। एक तो आपको 3 दिन की जमातें बनानी, दूसरा आपका दूसरा गश्त, ये बस्तियां कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर आपके हल्के के करीब होंगी। अरे बोले इतनी है ना, बजाना के अतराफ की बस्तियां जितनी भी है वो 12-15 किलोमीटर होगी। सुरेंद्र नगर के अतराफ की बस्तियां जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं है, 2 मकान, 4 मकान, 5 मकान, आप बोलो दूसरा गश्त कर सकते हैं कि नहीं? अभी आप लोगों का दूसरा गश्त कहाँ होता है? मस्जिदों में होता है, बाकी मस्जिदों में होता होगा। हमारा दूसरा गश्त ऐसे गैर मानूस इलाकों में होना चाहिए। हम लोग एक मर्तबा जर्मनी गए, तो एक साथी आए, आमिर साहब 3 साथी दे दो, हमको दूसरा गश्त करना है। तो हमारे आमिर साहब ने कहा भाई आप 3 आदमी चले जाओ। तो हमको लेकर चले, हम क्या समझे दूसरा गश्त कितना होगा? तो 5 किलोमीटर होगा। अब वो चले 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 80 किलोमीटर हमको ले गए। अभी भी हमारे ये गोधरा के अंदर और हमारे बहुत से इलाकों के अंदर 80 किलोमीटर तक लोग जाते हैं। 3 दिन की जमातें भी जाती है और कभी कभी महीने 2 महीने में मुलाकातों का निजाम भी होता है। हमारी इन बस्तियों को कवर करने के लिए अगर 3 दिन की जमात अपने टेंट के साथ जावे और 3 दिन अगर मेहनत कर लेवे, तो बोलो ये तमाम बस्तियां खड़ी हो सकती है कि नहीं? और जहाँ कयाम नहीं कर सकते, जहाँ 2-3 मकान है, वहाँ हमारा दूसरा गश्त है, 2.5 घंटे की मेहनत है। अगर ये निजाम करके हमारी ये 100 का मजमा ही, जो बाहर है, जो नहीं आए, हम उनके ऊपर दाम फिक्र न करें, वो नंबर 2 की बात। ये बैठने वाला मजमा अगर ये तय कर लेता है कि इंशाल्लाह पाबंदी के साथ हम सब 3 दिन लगाएंगे
تو بولو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا یہ پورا سریندر نگر حلقہ اور ضلع کھڑا ہو سکتا. محنت ہماری طرف سے کم ہے ورنہ مجمع انتظار میں ہے. ایک دو باتیں پیار محبت کی بتلانے کی ضرورت ہے, ہمت افزائی کی بات ہے, اور یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے اللہ پاک ان کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر صرف ہندوستان کا مسئلہ ہوتا تو اتنی قربانیاں اللہ کے دربار میں جمع ہو گئی ہے اللہ پاک ہندوستان کو ہدایت دے دیتے, لیکن مسئلہ پورے عالم کا ہے اور اللہ پاک کا قانون ہے کہ جتنی ہماری مجاہدہ پہنچے گا اتنا اللہ پاک کی طرف سے ہدایت دنیا میں وجود میں آئے گی. بھائی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا, ایک آدمی کھائے ہی نہیں بولو پیٹ بھر سکتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے لیکن دنیا دارالاسباب. ایک آدمی پانی پیے ہی نہیں بولو پیاس دور ہو سکتی. ایک آدمی شادی کرے ہی نہیں بولو بچے ہو سکتے. یہ ملتزم میں چپٹ کر دعا مانگے اے اللہ میرے یہاں اولاد دے دے اولاد دے دے, اور شادی نہیں کی بولو قیامت تک اس کے یہاں اولاد ہو سکتی. یہ اللہ پاک کا قانون ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں ہم گھبراوے نہیں. لوگ دنیا کے لیے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں, اب ان کے مجاہدے کے نتیجے پر ان کو دنیا مل جاتی اور ہمارے مجاہدے کے نتیجے پر بولو ہم کو اللہ پاک دین عطا فرمائے, لوگوں کا کلمہ صحیح ہوگا, نماز صحیح ہوگی. اس لیے ہمارے تمام ساتھی ہمت کے ساتھ اب تک جو ہو گیا ہو گیا. ہم نے ابھی آپ کو ایک دو علاقے میں کارگزاری پوچھی, بہت کم جماعتیں ہماری 3 دن کی ایسے علاقوں میں گئی. حالانکہ گزشتہ ان کارگزاری کے بعد ہم سب نے بیٹھ کر اپنے دیہات تجویز کیے. ارے بولو کیے تھے کہ نہیں؟ ویرم گام والوں نے کتنے دیہات لیے تھے؟ 8 دیہاتوں میں جماعت گئی نہیں, 3 دن کی جماعت گئی. آپ کو جو دیہات ہم نے دیے تھے نا وہ 3 دن کی جماعت کے لیے تھے. اچھا بھائی یہ نل کاٹھا والے انہوں نے کتنے دیہات لیے تھے؟ 4 گئی تھی. پورے سال میں 3 دن کی جماعت آپ کی جا رہی ہے. ہر مہینے 1 جماعت جاوے تو پورے سال میں 4 دیہات کی کتنی جماعتیں جانی چاہیے؟ اب اس کی جگہ پر 2-3 جماعت. اچھا بھائی بجانا والے ہیں انہوں نے کتنے دیہات لیے تھے؟ 5 کتنی جگہ جماعت گئی؟ جماعت 2 مرتبہ گئی اور بعض جگہ پر یعنی کہ ملاقات کر کے آ جاتے. لیکن آپ نے جو دیہات لیے تھے نا بھائی وہ تو 3 دن کی جماعتوں کے لیے تھے. جی اچھا ہم نے دیہات نہیں دیے تھے, آپ نے پسند کر کے لیے تھے. ارے بولو یہی تھا نا. اب ہماری کوتاہی ہو گئی کہ نہیں؟ اگر آپ کی جماعتیں مسلسل 4 دیہاتوں میں جاتی بولو کتنا اچھا کام ہو جاتا. اچھا بھائی چوتھا حلقہ کون سا ہے؟ دسہرہ والے کتنے دیہات لیے تھے؟ 4 کتنی جگہ جماعت گئی؟ نہیں 3 دن کی جماعتیں پورے مہینے میں کتنی جگہ گئی؟ میں پوچھتا کیا ہوں آپ جواب کیا دیں؟ بس جماعت نہیں گئی. اور آپ نے جو دیہات لیے تھے وہ جماعت کے لیے لیے تھے. اچھا بھائی 5واں کون سا حلقہ ہے؟ سریندر نگر والوں نے کتنی لی تھی؟ 4 کتنی جگہ جماعت گئی؟ 1 بھی جگہ نہیں گئی. یہ جو ہم کو دیہات دیے گئے تھے. اچھا اور ایک بات میں آپ کو پوچھوں, آپ کے پورے سال کے چاہے کم جماعتیں گئی چاہے 2.5 گھنٹے دوسرا گشت ہوا اس میں کچھ اعمال دعوت زندہ ہوئے؟ ماشاءاللہ. کیا وجہ کھڑے ہو کے بتلا. مکتب شروع ہوا, مکتب شروع ہوا. اور بھائی کسی جگہ کچھ زندہ ہوا؟ اور کسی جگہ نماز, کسی جگہ چلے کیا ہوا؟ ایک جگہ پر مدرسہ شروع ہوئے, ایک جگہ مدرسہ شروع, اور ایک جگہ پر ہوا کیا ماشاءاللہ. اور ہمارے ایک دیہات میں ایک ساتھی نے چلہ لگا, ایک ساتھی نے چلہ لگایا ماشاءاللہ. اور دیکھو یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کے نتیجے پر یہ وجود میں آیا. اکثر ہلکے والوں کی تو 3 دن کی جماعت گئی تھی
اور جن کی گئی ان کی 2-3 گئی. اس پر جب اللہ اب مکتب کا زندہ ہو جانا، ایک آدمی کا چلہ لگا لینا، کہیں اذان نماز زندہ ہو جاوے، اس کو ہم معمولی سمجھتے، بہت بڑی بات ہے. اگر ہماری محنت اچھی طریقے سے ہو جاتی، بولو ہمارا پورا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا کہ نہیں دین کے اعتبار سے. اچھا ایک بات اور پوچھو، ان میں سے یہ جو بیٹھے ہیں ان میں پابندی کے ساتھ 3 دن لگانے والے کون کون ہیں جو ہر مہینے لگاتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اگر ہم سب لگاتے تو بولو. اچھا ایک بات اور پوچھو، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ کس کے لگتے؟ ماشاءاللہ 10-12 کے لگتے. اچھا دوسرا گشت پابندی کے ساتھ کون کرتے؟ ماشاءاللہ. اب ہم سب نیت کریں، ارے بولو کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی سے لے کر موت تک پابندی کے ساتھ 3 دن زونوں کی جماعتوں میں ٹینٹ لے کر جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ نا ایک مرتبہ، اللہ کو بھی پیار آ جائے. ابھی سے لے کر موت تک پابندی کے ساتھ 3 دن اور ٹینٹ لگا کر یہ بنجر بستیوں میں مشورے کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ارے بھائی کاٹھیاواڑ تو کاٹھیاواڑ کی ابتدا ہے ہماری. بیٹھیے. ابھی آپ ہلکے وائز بیٹھ کر یہ جو زونوں کی جماعت میں پہلے چلی ہو آج چلی ہو اور وہ دیہات جو تم نے دیے وہ نام آپ لوگوں کے پاس ہلکے والے اپنے اپنے حلقے میں یا قریب کے حلقے میں مشورے سے جو آپ طے کر لیں. ہماری جماعت 72 گھنٹے لگاوے، ٹینٹ لے کر جاوے، پابندی کے ساتھ جاوے اور نئے سے نیا آدمی تو جانے کے لیے تیار ہے. جو مسئلہ ہے وہ کس کا مسئلہ ہے بولو؟ ہمارا مسئلہ ہے نیا آدمی. اس لیے ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ نیا مجمع بھی چلے گا اور پابندی کے ساتھ 3 دن دیہاتوں کے اندر آپ جاؤ گے. آئندہ دیکھو گے کہ انشاءاللہ ہمارے دیہات ہرے بھرے ہو جائیں گے. بھائی کریں گے سب انشاءاللہ. اچھا اب ایک ہلکے وائز بیٹھ کر مولانا ابھی ان کے ٹینٹ ہلکے کی سطح پر بنے ہوئے ہیں. اب ماشاءاللہ ہر فرد نے نیت کی ہے اطراف میں جانے کی. میری گزارش یہ ہے کہ اب یہاں یہ نیت کر لیں ہر مسجد اپنا ٹینٹ بنائیں گے. بھائی یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ کے پاس کتنے ٹینٹ ہیں؟ 3 ہے پورے ضلع میں. اور مسجدیں کتنی ہیں؟ 39 50 30. تو آئندہ آپ کے ٹینٹ کتنے بنیں گے؟ ارے بولو نا بھائی. 30. آپ کے ہر مسجد میں وہ برتن کا ٹھیلا ہوتا ہے؟ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 30 ہے. اب آئندہ ٹینٹ میں کتنے ہوں گے؟ ارے بولو نہیں، تاکہ کسی مسجد کو یہ عذر نہ ہو کہ ہمارے پاس تو ٹینٹ نہیں تھا اس کے لیے ہماری جماعت نہیں گئی. اچھا ٹینٹ کتنے کا آتا ہے؟ 11,000. ارے کہاں اتنا بتا، 2-3 ہزار میں آ جاتا ہے. اچھا اگر 11,000 میں آئے تو 11,000 کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ان دیہاتوں میں کام بڑھ جاتا ہو اور 11,000 کا ٹینٹ بھی لوگ آج کل موبائل کتنے کا لاتے ہیں، پلنگ کتنے کا بناتے ہیں، اس لیے متاثر نہ ہوئے. لیکن ہر مسجد والے طے کر لے ہوئے کہ انشاءاللہ ٹینٹ بنائیں. بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. مولانا اس سال ان کی پہلے زون میں شاید 1 جماعت چلی، 1 جماعت 2 اور دوسرے میں 1 چلی. اور ان کے زون کتنے ہیں؟ 4. 8 جماعتیں چلنی تھی. ہم لوگ نہیں گئے اس وجہ سے یہ جماعتیں نہیں گئی. آپ حضرات نے آپ کے زونوں کے حالات سنے. ماشاءاللہ 2 زونوں میں کام ہوا، اتنا اچھا کام ہوا ماشاءاللہ. دیہات کھل رہے ہیں، بستیاں کھل رہی ہے. ان حضرات نے ماشاءاللہ ہمت کی، یہ حضرات چلے تو اللہ نے اتنا کام دیا کہ اس مرتبہ جو دیہاتوں میں ہم نہیں جا سکے، اب آپ اندازہ کرو پورے سال سے تو وہاں جماعتیں نہیں گئی. اس مرتبہ اجتماع کے موقع پر بھی ہم نہیں گئے. ان بستیوں کے ایمان والوں کا بیچاروں کا کیا حل ہوگا؟ تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اللہ سے معافی مانگے.
और अब ये 3 दिन के ज़रिए से आइंदा साल तक इसको कवर करने की भरपूर कोशिश कर रही है, करेंगे इंशाल्लाह। चारों जोन हमारे साल भर आबाद रहने चाहिए, और आइंदा साल अगर हमारा मशवरा हो जाए तो इंशाल्लाह हम लोग जोनों में ज़रूर जाएंगे। सब जोनों में चलने की नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है आइंदा साल जोन में चलने की? और इस साल अपने 3 दिन की जमातों के ज़रिए से इन देहातों को टारगेट बनाकर कवर और वसूल कर लेना है, ठीक है ना इंशाल्लाह। अब देखो पहली जमात ने जो कर्जदारी सुनाई कि वो चाचा कहने लगे 45 साल के बाद, अब देखो मैं मेरे पास कोई मुलाकात के लिए आया, ऐसे हमारे और वो जोन जिसमें हम गए ही नहीं हैं वहाँ कैसे कैसे मुसलमान होंगे, हमारी ज़िंदगी में हमारी मौजूदगी में वो ईमान वाला दुनिया से ऐसे चला जाए, हम अल्लाह के वहाँ क्या जवाब देंगे। इसलिए अब हमें मौका मिला है 3 दिन के ज़रिए से वहाँ जाने का। हर मस्जिद वाला अपना टेंट बना ले और अपने 3 दिन उन देहातों में हम जाएंगे। हर मस्जिद वाले बनाओगे? कौन कौन मस्जिद वाले बनाएंगे टेंट? माशाल्लाह। अब हल्के की सतह पर बैठे भाई सुरेंद्र नगर वाले खड़े हो जाओ। सुरेंद्र नगर